Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. Hope you all are doing great today. So today we are gathered here for our President Connect. That's going to be an exposure draft on Education and Training Scheme 2021. We have with us teaching faculty and rates, and your valuable feedback and suggestion would be really preferable and will be appreciated. Thank you so much. I'll hand it over to Mr. President Iftikhar Taj. Thank you very much, Mustafa. Education Scheme 2021 after 8 years introduced करवाई गई है. हमने कहा था EGM में कि जी हम पहले मेंबर्स को भी एक्सपोज करेंगे इंप्लीमेंट करने से पहले. दैट वी आर डूइंग. ऑलरेडी आप लोगों ने देख ली होगी. आई एम मीटिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स. लाइक यस्टरडे आई वाज मीटिंग विद स्टूडेंट्स ऑन दैट. आज आप सबके साथ है. ऑनलाइन भी है. ऑल पाकिस्तान लेवल है. एवरी इंटरेक्शन. नथिंग विद a specific city only. And tomorrow I'm going to meet online with practicing members because they also have a viewpoint and they are one of the main stakeholders, particularly because of one change that first exam will become due after 1 year of the registration. So that's a big change. And then I'm going to meet industry members on that. And thereafter, we will collect all the comments and compile and consider with an ICAP and see what can be done and what should be done. And thereafter, we will implement the scheme. Today, we are hopeful that this will be applicable from March 10th. That means CAF and PRC will be in March and CFAP from June onward. I welcome all the participants here, all the educationists, and I have taken the support and help of Education and Training Department. Particularly, I have requested Mr. Umair Jamal, Senior Director, Education and Training, to join me today. He will brief us initially what is this scheme and what changes. Basically about the changes in particular, and then we will open the discussion for questions and comments. More of a comments I would say, and I would request everyone if we can talk about stage wise instead of general discussion. Means first PRC, then CAF, and then CFAP. Stage wise we'll move on so that we can have a very specific discussion and meaningful. With that, with all your permission, may I request Mr. Umair Jamal to please brief us. Umair Jamal, are you there? Umair sir? Yes, I'm here. I'm with Shumala. That's why my name is coming as Shumala. The presentation is Chai उमर साहब आपकी आवाज कम आ रही है. ये चाय ऑफर करो सबको जिससे भी, और मुझे भी दे दे. तुम्हारे उमर साहब आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. क्या आप कुछ क्लियर है? अब तो ठीक है आवाज. अगर इसी तरह आती रहे ठीक है. आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. स्कीम तो हम सब ने पॉइंट है ये है कि कुछ जी ठीक. स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि एजुकेशन स्कीम के कुछ तो पुरानी और नई में कॉमन थीम्स हैं. लाइक प्रिपेयर द एजुकेशन स्कीम बेस्ड ऑन द रोल्स ए चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म्स. लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयरर होता है एज एन अकाउंटेंट, देन ऑडिटर्स एंड एश्योरेंस एक्सपर्ट होता है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल. ये हमारे कोर रोल्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम अपनी स्कीम को डेवलप करते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट देते हैं, नीचे कॉम्पिटेंसेस डिफाइन करते हैं, देन एबिलिटीज. जो तो इस स्कीम नंबर 2013 और स्कीम 2021 में इस लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है.
we still understand that accountant, auditors, and management professional role will continue to be performed by chartered accountants. The key difference between the education scheme 2013 and 21 is that we found that technology is a key enabler for performing the roles we have already discussed about. तो एक ये एरिया है जिसको enhance किया गया है और इसको reinforce किया गया है by some courses and by introducing a basic course in CAP level. उसके बाद एक एनालिटिकल स्किल्स होती हैं जो मेंबर्स के पास होती हैं, उस डोमेन पे फर्दर जो है वो फोकस रहा और इस स्कीम में चेंज आई. तो अपरेंटली अगर आप देखें उसको, अगर ओवरऑल देखें तो एजुकेशन स्कीम 2013 एंड 2021 में कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेंस लेवल पे दो स्किल्स के ऊपर हमारा फोकस रहा. एक एनालिटिकल स्किल्स थी और उसके इनेबलर्स पे. जो हाइलाइट्स हैं, वैसे तो बहुत सारी चेंजेस हैं, लेकिन जो बहुत आपके लिए की होंगी वो है कि एंट्री टेस्ट आ रहा है फॉर HSC जिनके 50 to 60% मार्क्स हैं. ए लेवल जिन्होंने किसी भी अगर पेपर में डी ग्रेड ले लिया तो उनको भी हम चाहेंगे कि एक फिल्टर से गुजरें जो क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट कहलाएगा, QAT. दूसरी जो की चेंज है वो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, जिसमें एक जो हमारा PCSC हुआ करता था उसको स्लाइटली चेंज करके PPE इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी पर्सनल इफेक्टिवनेस का एक कोर्स ले रहे हैं. टेक्नोलॉजी के अपनी पूरे पीरियड ऑफ एजुकेशन में 2 कोर्सेज करने होंगे स्टूडेंट्स को. एक तो में कोई ऑप्शन नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, और दूसरे कोर्स जो 2 हैं ट्रेनिंग के दौरान करने वाले, उनमें एक डेटा एनालिटिक्स का है और एक फिनटेक का है. दोनों रेलेवेंट कोर्सेज हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उनमें से कोई एक करना होगा. एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ वेरी थियोरेटिकल पेपर जो BMBS का होता था, उसकी जगह कि मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का नंबर्स विद स्टोरीज एंड स्टोरीज विद नंबर्स का कंसेप्ट है कि स्टोरी इनकम्प्लीट रहती है जब तक कि उसके साथ नंबर्स ना हो, और नंबर्स इनकम्प्लीट होते हैं जब तक उसके साथ स्टोरी. तो एक नया एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हम कर रहे हैं कि MFA का एक पेपर था. इसके अलावा जो अटेम्प्ट लिमिटेशन थी उसकी जगह पीरियड लिमिटेशंस इंट्रोड्यूस हुई जो प्रपोज्ड है एक्सपोजर ड्राफ्ट में. PRC लेवल पे मैक्सिमम 15 मंथ का टाइम मिल जाएगा स्टूडेंट्स को. 12 मंथ स्टैंडर्ड है, 3 मंथ्स जो है एक्सटेंडेड होते हैं फॉर हार्डशिप केसेस. CAF लेवल पे 4 इयर्स का स्टैंडर्ड टाइम है और 1 ईयर का एक्सटेंडेड टाइम मिल जाएगा फॉर हार्डशिप केसेस. CFAP लेवल पे 11 इयर्स का टोटल टाइम दे रहे हैं ट्रेनिंग स्टार्ट होने से लेके. और ट्रेनिंग, अच्छा ये तो वो है जो अटेम्प्ट लिमिटेशन है. एक और की चेंज आ रही है जो कि इस प्रोफेशन बहुत अरसे बाद आ रही है, और वो है कि जो एक पीरियड होता था ट्रेनिंग का फॉर एलिजिबिलिटी टू बी एडमिटेड इन द एग्जामिनेशन ऑफ CFAP वाज 18 months. Now it has been proposed to be reduced to 12. CAF पे 2 ग्रुप दोबारा से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. शायद जो लोग हमारे एक्सपीरियंस टीचर उनको याद हो कि ABCD मॉड्यूल्स हुआ करते थे. C और D जो है वो इंटरमीडिएट होते थे, अब वो किसी और शक्ल में दोबारा आ रहे हैं. अच्छा, एक और कंडीशन जो कि पहले कभी नहीं होती थी वो अब आ रही है कि मिनिमम पेपर भी अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट है. CAF पे 3 पेपर मस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, CFAP पे 2 पेपर अनलेस वी हैव लेस नंबर टू अटेम्प्ट. अच्छा, अब मैं ये जो स्कीम के हाईलाइट देने के बाद बजाय इसके कि हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि अब तक जो हमें फीडबैक मिले हैं उसमें जो सबसे ज्यादा फीडबैक आया है वो आया है CAF 1 and 2 जो है डिसकंटिन्यू हो रहे हैं और या उनको स्टेप डाउन किया गया है और PRC में शिफ्ट किया गया है. तो उसकी वजह से जब स्टेज वाइज हम ट्रांजिशन दे रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट इस वक्त CAF 1 and 2 में थे, क्योंकि उन्होंने AFC पास किया होगा और उन्होंने AFC की वजह से PRC की एग्जेम्पशन मिल जाएगी या इक्विवेलेंस मिल जाएगी, तो जब वो CAF
स्टेज के पेपर्स में जाएंगे तो वहां उन्हें कहीं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा। यानी कि उनको एक ऑटोमेटिक क्रेडिट मिल जाएगा इन दोनों पेपर्स में बिकॉज ऑफ AFC इक्विवेलेंस। इसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट थे। 2 इसमें लोग जो हमारे कमेंट हैं उनके ग्राउंड्स हैं। एक तो ये कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पेपर हासिल होगा या क्रेडिट हासिल होगा, वो FR1 का पेपर यानी जो स्टैंडर्ड बेस्ड पेपर है उनको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, उनकी कॉम्पिटेंस लेवल वो नहीं होगा कि वो कर सकें। एक ये था, और दूसरा ये था कि वो ज्यादातर एक बड़ी तादाद ने ये भी कहा कि लॉजिकल नहीं लगता है उस चीज में क्रेडिट देना है जिसको उन्होंने कभी स्टडी ना किया। फिर कुछ कमेंट हैं कि HSC और A लेवल पे को पास करने के बाद CA के किसी कोर्स में एग्जामिशन नहीं मिलनी चाहिए। HSC और A लेवल के सिर्फ हम PRC लेवल पे एग्जामिशंस ऑफर कर रहे हैं और PRC को हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्लेस करते हैं रादर देन हमारा जो कोर्स है CA का। अब CA का कोर्स या CRN जो इशू हुआ करेंगे वो CAF लेवल पे इशू हुआ करेंगे, PRC लेवल पे उनको एनरोलमेंट्स मिला करेंगे। तो इस कंसेप्ट की वजह से एग्जामिशन HSC और A लेवल पे जस्टिफाइड समझते हैं। लेकिन बहरहाल कमेंट हैं, ये कमेंट नोट हुए हैं और काउंसिल में बिल्कुल डिबेट और डेलिब्रेट होंगे। एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स के ऊपर अच्छे कमेंट मिले हमें कि इसको भी क्लैरिटी होनी चाहिए डायरेक्टिव्स के अंदर। फिलहाल नहीं है कि एग्जामिनेशन जो है वो PRC की और उसके QAT की किस फ्रीक्वेंसी से होंगे, तो उनका रिजल्ट किस तरह अनाउंस होगा, फौरन हो जाएगा या टाइम टेकिंग होगा। तो ये कमेंट बिल्कुल नोट हुए हैं। जहां क्लैरिटी चाहिए होगी वहां काउंसिल देगी और जहां FAQs के जरिए हम हैंडल कर सकेंगे वहां FAQs के जरिए हैंडल करेंगे। एक बड़ा अच्छा कमेंट आया कि QAT का सिलेबस मौजूद नहीं है, तो QAT की प्रिपरेशन एक प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स को जो 50 to 60% के बैंड में होंगे। 60% अबव को तो QAT देना नहीं। तो ये भी एक ऐसी कमेंट है जो हम इसको कंसीडर करेंगे और काउंसिल के सामने प्रेजेंट करेंगे। जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो हम उम्मीद करते थे अपने एजुकेशनिस्ट से वो फुलफिल नहीं हुई, शायद अब कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि अभी 8 अगस्त तक हमने डेट बढ़ा दी है कमेंट की, कि हमें अपने कंटेंट्स पे कोई कमेंट नहीं मिले हैं। जो हमारा कंटेंट पे कमेंट्स हैं वो उसकी एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से या किसी और सर्कल से हमें नहीं मिल सकती। जो बेस्ट कमेंट्स आ सकते हैं, जो फीडबैक आ सकते हैं, वो टीचर्स से ही आ सकते हैं। तो ये एक ऐसा हाईलाइट में करना चाह रहा था कि आप लोगों को, क्योंकि हमारी इस वक्त सारी जो फ्रेटर्निटी बैठी हुई है वो टीचिंग और एजुकेशन साइड से ही है, तो कंटेंट पे आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस वक्त काउंसिल के पास जाएं और वहाँ कंटेंट पे कोई कमेंट ना हो तो बड़ा जैसे कभी डेफिशिएंसी होगी। कैफ लेवल पे क्या हम AFC पे यहाँ रोक के कुछ और कमेंट ले लें ताकि ये स्ट्रक्चर हो जाए डिस्कशन, या मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूँ? आप प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें। कैफ लेवल पे जो कमेंट्स आए हैं अभी तक टीचर्स वगैरह के, उसमें बड़ा हाईलाइटेड है कि हैंड्स ऑन कोर्सेज जो है ICAP थर्ड पार्टी को डिवॉल्व ना करे, और उसकी बड़ी रैशनल दी गई है। पिछले जो एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे किसी भी कोर्स में जो थर्ड पार्टी को डिवॉल्व हुई है, तो उसमें वो लेवल ऑफ रिगर नहीं होता जो ICAP की रिक्वायरमेंट होती है। एक क्लैरिटी मौजूद नहीं है डायरेक्टिव में, वो हाईलाइट हुई है कि जो ब्लॉक के स्टूडेंट हैं जिनका बाढ़ हो गया इस वक्त हमारे कैफ के, CFAB में अभी कोई नहीं हुआ है, लेकिन जो कैफ लेवल जिन लोगों को अटेम्प्ट 6 कंप्लीट कर चुके हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर इस वक्त हम रेगुलेशन पढ़ें तो उनको पीरियड मिल जाएगा और वो फर्दर एग्जाम दे सकेंगे, लेकिन क्या ये इंटेंशन है काउंसिल की? नहीं है, ये भी डेलिब्रेट नहीं होंगे। इसलिए ये एक ऐसा एरिया है जिसको क्लैरिफाई करना होगा हमें डायरेक्टिव, जो इस वक्त डायरेक्टरेट को लगता है। ग्रुप A और B की प्रोग्रेशन पे क्वेश्चंस हैं लोगों को कि इसमें जो लोग एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको किस तरह प्रोग्रेशन मिलेगी। तो क्योंकि इस वक्त डायरेक्टिव में कुछ नहीं लिखा हुआ, वो प्लेन ये है कि ग्रुप A के 2 पेपर कम से कम करने पड़ेंगे, तो इस वक्त एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे भी यही रूल अप्लाई होगा। आपके कमेंट जो है डेफिनेटली काउंसिल पे प्रेजेंट होंगे, अगर वो उसमें कोई ट्रांजिशन के स्टूडेंट को कोई रिलैक्सेशन देना चाहें तो दे दें। अदरवाइज 2 पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही
रीजनेबल रिक्वायरमेंट है। अपरेंटली नहीं लगता कि इसमें कोई हार्डशिप क्रिएट होगी। एक कमेंट आया है कि ERP पे भी हैंड्स ऑन कोर्स होना चाहिए, और यानी जो फाइनल लेवल पे हम फिनटेक, डेटा एनालिटिक्स पे दे रहे हैं ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ERP का भी ओपन करना चाहिए। ये भी कमेंट रख लिया गया है। फिर ट्रांजिशन के ऊपर एक कंफ्यूजन मुझे लगी कि कुछ टीचर्स को है या RATs को है कि शायद कैफ पैरेलल चल रहे होंगे ओल्ड और न्यू। तो यहाँ मैं क्लेरिफाई कर दूं कि जो हमने रूल्स में भी, डायरेक्टिव में भी लिखा हुआ है कि देयर वुड नॉट बी एनी पैरेलल कैफ। तो जितना कैफ का स्टूडेंट इस वक्त हैं वो अपने अपने जो भी मैप्ड सब्जेक्ट हैं उनमें क्रेडिट ले लेंगे, यही लिखा हुआ है डायरेक्टिव में। और उसके बाद वो जो बैलेंस कैफ है, न्यू कैफ, उसके पेपर्स के लिए उन्हें एक टाइम मिलेगा कि 6 एक प्रोडक्ट बनाई जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग पेपर्स, सब्जेक्ट टू मिनिमम 24 मंथ्स। जो उनको 24 मंथ से कम पीरियड नहीं होगा, उससे ज्यादा ही मिलेगा। उसका हम अभी एक FAQ में टेबल भी बना देंगे ताकि वो क्लैरिटी भी रहे, और ये बड़ा क्लियर कर देंगे कि कैफ कोई पैरेलल नहीं चल रहा होगा। कैफ लेवल पे भी यही हमें नजर आया कि कोई फीडबैक हमारे पास मौजूद नहीं है कंटेंट्स के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों से। अच्छा, MSc और CFAP में क्योंकि कोई बड़ी चेंज ही नहीं आई है। एक हैंड्स ऑन कोर्स एथिक्स का जो पहले एक बार ट्रेनिंग पे देना पड़ता था, अब 3.5 years या 4 years के जो ट्रेनिंग्स हैं उनको 2 बार देना पड़ेगा। तो इस पे कमेंट थे कि हार्डशिप क्रिएट करेगा। तो अभी हमारे भी अपने व्यूज हैं इसके ऊपर, लेकिन बहरहाल ये कमेंट था। MSc और CFAP में कुछ मेजर कमेंट्स नहीं आए हैं। यहाँ भी वही एक डेफिशिएंसी में नजर आ रही है कि हमें कंटेंट्स पे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। इसके बाद मेरे पास सिलेबस का एक छोटा सा की चेंजेस का की प्रेजेंटेशन है, रन थ्रू कर देता हूं। इसमें बताने का तो मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है। जो हमने AFC लेवल पे जो पेपर्स थे उनको जब PRC में ले गए हैं तो कुछ डिलीशंस की हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जो की चेंजेस हैं उनमें ये चेंजेस हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इंक्लूड किया है, पार्टनरशिप अकाउंट खत्म कर दिया है। इकोनॉमिक्स में एक अच्छा चेंज आया है बड़ा, कि जो हमारा प्रैक्टिकल साइड ऑफ द इकोनॉमी है वो इंक्लूड हो रही है, और जो फाइनेंस साइड थी उसमें फिर हमने कमी की है क्योंकि फाइनेंस कैफ में कुछ पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, दोबारा शायद रिपीट हो गया। बिजनेस लॉ के अंदर अब 2 हिस्सों में बढ़ गया है, तो कुछ एडिशंस बड़े हो गए हैं क्योंकि अब वो 100 मार्क्स के दोनों सेपरेट पेपर्स हैं। इंडेमनिटी, गारंटी एंड प्लेज को डिलीट किया है। इसमें एडिशंस हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आ रहा है। कुछ इसमें प्रैक्टिकल चीजें इस तरह ली गई हैं कि जो हमारे टॉप हमें आइडेंटिफाई हुए थे 11-12 सेक्टर्स, उनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे एक्सप्लोरेशन, पावर सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस मैनेजमेंट, मैनेजरियल फाइनेंशियल एनालिसिस में डिसीजन एथिक्स को शामिल किया। एथिक्स अब अच्छे खासे सब्जेक्ट्स में एम्बेड किया गया है। स्टैटिस्टिकल मेथड जो QM में पढ़ा है उसकी बिजनेस प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे, जिसको हैंड्स ऑन कोर्स सप्लीमेंट करेगा। फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस जो है वो अब कैफ लेवल पे भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। जो खत्म हुआ है कैफ लेवल पे वो इंडिविजुअल बिहेवियर एंड मोटिवेशन और लीडरशिप, नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसके अलावा रिपोर्टिंग 1 में चेंजेस हैं। टैक्सेशन में चेंजेस नजर आ रही होंगी आपको। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 में IFRS 15 1 से आया है, 1 से 2 में शिफ्ट हो गया है। और डिलीशन आई पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन एंड एरर्स। डिलीशन, अच्छा, अब ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजट्स होते थे और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, क्योंकि अब ये MFA में चले गए, यहाँ से डिलीट हो गए। ऑडिट एंड एश्योरेंस में
क्वालिटी कंट्रोल को ऐड किया गया है, और जो बहुत पुरानी डिमांड थी हमारे टीचर्स की कि फ्लो चार्ट मैच नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा ऑडिट एंड एश्योरेंस से, रिलेटेड पार्टी को ख़त्म किया है। ये एक ऐसी चेंज है जो कल भी किसी स्टूडेंट ने आइडेंटिफाई की थी, तो मैं आपके सामने भी रखना चाह रहा था। CFAP पे कोई बड़ा चेंज नहीं है, की चेंज जो है वो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर है। इसमें कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस ऐड हुए हैं और कुछ नए एक्ट्स हम इसमें पूछने जा रहे हैं। कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018 ला रहे हैं हम, और कोड ऑफ एथिक्स इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007 है, उसके कुछ सेक्शंस ऐड कर रहे हैं। और जो हमारे कंपनी लॉ के प्रोसीजरल जो हमने खत्म कर दिए थे इस एग्जिस्टिंग से, कुछ प्रोसीजर्स को वापस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अब ओपन बुक एग्जामिनेशन में ये कुछ शायद आसानी से किए जा सकेंगे। लेकिन जो भी ऐड कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक रेगुलेशन को आइडेंटिफाई किया है। लाइक आप देख रहे होंगे कि कंपनीज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में सिर्फ रेगुलेशन नंबर 3 से लेकर 6 तक को हम टेस्ट करेंगे। इनको एडिशन करने के लिए हमने जो ये डिलीशंस भी की हैं, तो जो नेट हमारा बनता है वो टॉपिक्स 4-5 बनते हैं जो हम ऐड कर रहे हैं, बाकी डिलीशन कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन थी। अगर हम वापस चले जाएं AFC पे, या जिस तरह प्रेसिडेंट चाहें इसको स्ट्रक्चर कर लें अपनी डिबेट को। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे। एक तो पार्टिसिपेंट्स जो ऑनलाइन है इनसे रिक्वेस्ट है कि अपना नाम और साथ में रीड का नाम जरा लिख लें उसके ऊपर। और जो हमारे एडमिन हैं इसके, जहाँ पे लोगों ने अपने नाम नहीं लिखे हुए 5-1 मिनट के बाद उनको रिमूव करते हैं। वी वांट टू सी के कौन साहब हैं जो इस वक्त ऑनलाइन है हमारे साथ। आई ओपन अप द डिस्कशन। सबसे पहले PRC पे ही हम जाते हैं, उसके बाद कैफ पे डिस्कशन होगी। और इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि मनोवर हमीद साहब हैं, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, तो पहली अपॉर्चुनिटी इनको ही दे देते हैं। काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है इन्होंने। मुनव्वर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका आवाज आ रही है? थैंक यू सो वेरी मच प्रेसिडेंट साहब, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1994 से अकाउंटिंग की टीचिंग में हूँ, और इसमें मैंने ये देखा कि CA के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया है। और बेसिकली फोर्ट्रे जो है वो अकाउंटिंग है मेरा, जिसमें मैंने A लेवल्स के बच्चों से स्टार्ट किया था कराची ग्रामर स्कूल में। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि जो CA के बच्चे हैं उनको जो चैलेंज आता है जब वो CA में आते हैं, तो इनके पास ये CA में जब वो एडमिशन लेते हैं तो 2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है एडमिशन लेते हैं। 1 आर फ्रॉम A levels and 1 फ्रॉम इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कॉमर्स। तो उसमें सिचुएशन जो है वो ये है कि जो कंटेंट के हवाले से मैं इस वक्त बात करना चाहता हूँ। जो कंटेंट डेवलप हुआ है वो इस तरह से डेवलप हुआ है जिसमें जैसे इस वक्त मेरे हाथ में जो बुक है ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का टेक्स्ट है, इसके साथ इसकी जो है वो एक क्वेश्चन बैंक भी होता है, आपको पता है। तो उसमें जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के इश्यूज हैं। लैंग्वेज जो है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल होनी चाहिए कंटेंट के हवाले से। मैंने लास्ट ईयर एडेक्सेल की एक बुक रिव्यू की, और वो A लेवल्स में पढ़ाई की जाती है, एडेक्सेल इंटरनेशनल की बुक रिव्यू की। और इस सिलसिले में मैंने ICAP को लिखा भी कि आई वुड लाइक टू ऐड वैल्यू फॉर द स्टूडेंट्स इन सच अ वे कि मेरे पास जो नॉलेज स्किल है उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट्स। जब वो कंटेंट्स स्टूडेंट्स के हाथ में है तो बैलेंस्ड कंटेंट को जो स्टूडेंट्स A लेवल के बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी, एंड नंबर 2 जो बच्चे इंटरमीडिएट कॉमर्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी, वो दोनों मैनेज कर सकें। So this is the concern regarding content, sir. Number 2, am I audible? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, नंबर 2, लम्स ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, केस स्टडी डिपार्टमेंट। आई डिड नॉट फाइंड, मैं स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास, बिकॉज एट द मोमेंट आई एम एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी,
आई एम टीचिंग एट कीट. कीट इज यूनिवर्सिटी, यू पीपल नो वेरी वेल. इसके अलावा नॉलेज पाकिस्तान के नाम से आई एम एडिंग वैल्यू फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ. तो मैं ये देखता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो सीए कर रहे होते हैं उनके पास, हालांकि हमारे यहाँ जो रेस के जो लोग हैं जैसे अलहम्द हैं, ताबानीज हैं, these people are working very hard to add value in the lives of the students, but still उनके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनके पास जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, वो इसलिए स्ट्रांग नहीं है कि वो बुक में जो कुछ दिया हुआ है उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं इंडस्ट्री से. एट द एंड ऑफ द डे दे डू नॉट हैव दैट स्पेसिफिक स्किल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू द मार्केट. तो उसके लिए अगर एक केस स्टडी डिपार्टमेंट कायम किया जाए आईकैप में, सो आई एम वेरी मच अवेलेबल टू एड वैल्यू फॉर आईकैप एज वेल एज इनफैक्ट फॉर पाकिस्तान. और इसमें हम जो है वो लोकल केस स्टडीज जो है वो डेवलप कर सकते हैं. उन केस स्टडीज को डेवलप करने के बाद हम स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि किस तरह से केसेस को अटेम्प्ट किया जाएगा. मुनव्वर साहब, हमारी डिस्कशन इस वक्त पीआरसी के ऊपर है. मैं बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक सर्टेन डिसिप्लिन फॉलो करें, और अगर हम टीचर्स और फॉलो करेंगे तो कौन करेगा. उमैर साहब, जो पीआरसी से रिलेटेड डिस्कशन है वो नोट करें. तो मुझे लग रही है कि लैंग्वेज शायद इंप्रूव करने की जरूरत है आपको मटीरियल्स की. जी इजाजत हो. थोड़े से ऑनलाइन दे, उसके बाद इधर मेरा ख्याल है कि मिक्स ले लें आप. चले वन बाय वन कर लें. जी अस्सलाम वालेकुम. मियां फरहान. मैं इनफैक्ट पीआरसी से मुतल्लिक ही बातचीत करना चाहूंगा. सबसे पहले आपके डायरेक्टिव 1.2, इसके अंदर जो हॉट इशू है सबसे पहले उसको एड्रेस करना चाहूंगा. वो है एग्जाम्पशन जो कैफ 1 और कैफ 2 की पीआरसी के अंदर आने की वजह से उसके जो है वो पीआरसी की एग्जाम्पशन का जो एएफसी वालों को मिल रहा है कैच, बहुत सेंसिटिव इशू है. आई एम इनटू टीचिंग फॉर लास्ट अराउंड 28 years एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेशंस दैट हैव टॉट, हो ही नहीं सकता कि अगर बच्चे ने बेसिक ना पढ़े हों और आप उसको जो है कैफ कि जो है वो FAR 1 के लेवल पे कहें कि जी वो कॉम्प्रिहेंड कर सकेगा सिलेबस को, कभी भी नहीं हो सकता. आई ट्रस्ट के मेरे और भी जो दोस्त इस वक्त ऑनलाइन या मौजूद इस वक्त फिजिकली मेरी इस बात को सुन रहे हैं, दे विल एग्री विद दिस, कि आप बेसिक्स पढ़ाए बगैर कभी भी बच्चे को जो है वो एडवांस लेवल पर नहीं ले जा सकते. इसलिए ये जरूर कंसिडर किया जाना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पशन उनको दी जा रही है एफसी स्टूडेंट्स को, खास तौर पे फाइनेंशियल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, ये शुड नॉट बी अकोमोडेटेड. ये सिलेबस के जो स्कीम के अंदर जो मौजूद है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है. इसकी वजह से कितना बड़ा कियोस भी फैला हुआ है. मैं नहीं समझता क्यों ये गैर संजीदगी आई है हमारे स्कीम के. अभी तो ड्राफ्ट सामने आया, एक्सपायर ड्राफ्ट सामने आया, और पहले ही जो है बहुत से इंस्टीट्यूशंस ने इसके ऊपर स्टूडेंट्स को जो है वो डिट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने ये पेपर ड्रॉप कर दिया. उनका क्या होगा आई डोंट नो. जिस तरह से इस वक्त ये सिलसिला चल रहा है, इस पॉइंट को पहले एड्रेस कर लें आप, उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ. ट्रांजिशन वालों पे एप्लीकेबल है. अगर कंटेंट पे अगर आप कोई कमेंट करना चाहें जो पीआरसी का इस वक्त देखें जी, कंटेंट के ऊपर मैं बहुत डिटेल से, मैं कंटेंट पे बहुत डिटेल से बाद में भी बात करता हूं. इस ट्रांजिशन के अंदर भी जो स्टूडेंट अब एएफसी पास कर गया, जिसने एएफसी पास कर लिया, उसको आप सारा का सारा वो कैसे एग्जाम्पशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते. ये पेपर के लिए आपको स्पेशली डिजाइन करना पड़ेगा. ट्रांजिशन के अंदर बेशक आप डिजाइन करें, बेसिक्स कुछ आप सजेशन ये है, बेसिक कोर्स आप ओपिनियन है. सजेशन ये है कि आप इसको पॉइंट नंबर 1 एग्जाम्प्ट ना करें. नंबर 2, अगर आपने एग्जाम्प्ट करना है तो आप एक स्पेशल कोर्स डिजाइन करें जो बच्चा ये पास करने के बाद पीआरसी की एग्जाम्पशन के लिए अलाउड हो सकता है, अदरवाइज नॉट. ठीक है, थैंक यू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. 1 by 1 का सूल तय हुआ. जी जी, अच्छा प्लीज आप अगर 1 by 1 का जी 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 जी. सो अब लुकमान है हमारे साथ. जब तक आप खत्म नहीं होंगे. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम लुकमान रफीक है एंड आई एम फ्रॉम स्क्राइबर कॉलेज कराची. तो बेसिकली जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि सबसे पहले पीआरसी के ऊपर बात हो जाए,
मैं कुछ एक 2-3 पॉइंट्स कह देता हूं जिनका ताल्लुक पीआरसी से भी है और एट द सेम टाइम कुछ ओवरऑल क्वालिफिकेशन के ऊपर भी सजेशन है। तो देखें, पहली चीज तो ये है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस पीआरसी मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि पूरी आईकैप की जो क्वालिफिकेशन है ना, उसमें पहले भी 21 पेपर्स हुआ करते थे, अब भी 21 पेपर्स हैं। और सिचुएशन ये है कि पीआरसी में हमने 5 पेपर तो इंट्रोड्यूस करे, सही है, लेकिन आप अगर एसीसीए को देखें तो एसीसीए में टोटल 13 पेपर होते हैं। अगर कोई फाउंडेशन डिप्लोमा से आता है तो उसके 17 पेपर होते हैं एक बार। नंबर 2 पॉइंट ये है, आईसीडब्ल्यू देखें तो आईसीडब्ल्यू में 15 पेपर होते हैं। तो आप नंबर 1 पॉइंट तो ये कि क्वालिफिकेशन हमारी जो ना वो अभी तक वहीं पे खड़ी हुई है जहां पे पहले खड़ी हुई थी, कि उसमें 21 पेपर ही हैं, उसमें पेपर कम नहीं हुए। तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आप compete कर रहे हैं तो उस compete करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपका जो है ना वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती क्वालिफिकेशन अगर आप इंटरनेशनली इसको compete करें। नंबर 1 तो बेहतर ये होगा, मैं समझता हूँ कि कुछ पेपर्स को पीआरसी लेवल के ऊपर भी मर्ज किया जा सकता है, ना कि ये कि 5 पेपर जो है ना वो अलग अलग बनाए जाएं। तो मेरा ये सजेशन है कि जिसमें पीआरसी 1 है आपका, इसी तरह से आपका जो है ना पीआरसी आप लोगों ने 5 इंट्रोड्यूस किया है, इसको आप मर्ज करके कुछ चीज बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप जो है ना वो पीआरसी 1 का पेपर देखें, बिजनेस राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, तो अगर आपने वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर ही लेना है तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो है ना उससे आप क्या सिखाएंगे बच्चे को। तो मेरा एक कमेंट तो ये है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि जिस तरह से ये अभी एक फरहान साहब आई थिंक थे जो कि वहां पे लाहौर में बैठे हुए हैं, उन्होंने बात करी कि एग्जामिशन नहीं देनी चाहिए बच्चों को। मेरा इसमें कुछ थोड़ा सा इनपुट है। वो इनपुट ये है कि एग्जामिशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए ये तो अल्टीमेटली जो ना वो आप डिसाइड करेंगे, बट आई थिंक आईए की एग्जामिशन जो ना वो एक कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि उसकी रीजन है कि आईए की एग्जामिशन की वजह से बच्चा एफएआर 1 के लिए रेडी नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इकोनॉमिक्स की एग्जामिशन से कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल आईकेप ये डिसाइड करता है कि विड्रॉ भी कर ले एग्जामिशन, तो मैं इसमें एक सजेशन ये दूंगा कि आईकेप ये करे कि जब वो ट्रांजिशन स्कीम लेकर आए ना, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाए। वो ऑप्शन दिया जाए कि वो नई स्कीम के पैटर्न के ऊपर पेपर दे दें या पुरानी स्कीम के पैटर्न के ऊपर पेपर दे दें। 1 साल तक वो उनके पास ऑप्शन दिया जाए। क्या मतलब ये है कि देखिए एक नया बच्चा आएगा ना 0 मीटर, वो 0 मीटर बच्चा आएगा, वो एमसीक्यू बेस्ड आईए का पेपर दे देगा, वो एमसीक्यू बेस्ड इकोनॉमिक्स का पेपर दे देगा, वो पास होकर चला जाएगा। और जो बेचारा पुराना रिटन पेपर दे रहा है लंबा लंबा, वो बच्चा फेल ही होता जाएगा इकोनॉमिक्स में मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अगर आप पीआरसी में एग्जामिशन जस्ट इन केस विड्रॉ करते हैं, अगर तो करते हैं, तो आप फिर ये करें कि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको आप जो है ना ऑप्शन दे दें कि भाई अल्टीमेटली जो है ना आप ये कर लें, क्या अल्टीमेटली जो है ना ये नई स्कीम के मेथड के ऊपर आप पेपर दे दें। तो ये पीआरसी पे 2 कमेंट हो गए। तीसरा कमेंट पीआरसी के ऊपर ये है कि पीआरसी में मैं समझता हूं कि मतलब ये नहीं कि उसका थोड़ा सा ताल्लुक कैफ से हो जाएगा, लेकिन मैं उसको पीआरसी रिलेटेड सजेशन दे रहा हूं कि देखें आप लोगों ने कैफ के ऊपर एक पेपर रखा है मर्केंटाइल लॉ यानी बिजनेस लॉ के नाम से पेपर रखा है ना, जो आपने कंपनी लॉ को और मर्केंटाइल लॉ को स्प्लिट कर दिया अब ना। मैं ये समझता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर आप चले जाएं तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो है ना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मर्केंटाइल लॉ की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि हम उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को मर्केंटाइल लॉ का इतना बड़ा पेपर पढ़ाएं। बेहतर ये होगा मेरे हिसाब से कि आप जो है ना वो मर्केंटाइल लॉ के पेपर को एमसीक्यू बेस्ड पेपर कर दें और कंपनी लॉ के पेपर को रिटन पेपर करने दें। सही है। अच्छा, उससे फायदा आपका ये हो जाएगा कि मर्केंटाइल लॉ का जो ना एक पेपर वो नीचे आ जाएगा अपना एमसीक्यू बेस्ड बेसिस पे, और उस मर्केंटाइल लॉ को आप आगे कैफ में रिप्लेस कर सकते हैं सिनेरियो बेस्ड बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर से। क्योंकि देखें आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर जो है ना एक अकाउंटेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, अकाउंटेंट नहीं है। कंप्यूटर ने अकाउंटिंग करनी है, टेक्नोलॉजी ने अकाउंटिंग करनी है, तो आप एक रिटन सिनेरियो बेस्ड जबरदस्त किस्म का पेपर लेके आ जाएं कैफ के अंदर और बिजनेस लॉ को उठा के नीचे जो है ना एमसीक्यू बेस्ड पेपर कर दें। ये मेरा सजेशन है। इसमें मैं माजरत खाऊं थोड़ा सा मैंने जो है वो कैफ को भी टच कर लिया, लेकिन सर उसका ताल्लुक पीआरसी से था इसलिए मैंने उसको टच कर दिया। तो ये मेरे कुछ सजेशन है। आगे कैफ की जब बात होगी मैं कैफ के ऊपर भी बात करूंगा। शुक्रिया बहुत जी। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच रंजीत साहब। सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स कि आपने इसको एक्सपोज किया स्कीम को, क्योंकि इसी रूम में डिसाइड हुआ था एजीएम में 2018 में कि ये स्कीम जो है ये एक्सपोज की जाएगी, लेकिन ये स्कीम का वेट करते रहे हम लोग।
फिर मुझे तोला साहब से पता चला कि वो इसके बाई लॉज के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि स्कीम एक्सपोज नहीं हुई, आप लोगों ने कमिटमेंट की हुई है एजीएम के अंदर, फिर दैट्स व्हाई ही इन्फॉर्म्ड मी कि यस। पहले तो मेरे से उन्होंने मिनट्स मंगवाए, मैंने कहा 4.8 पैराग्राफ देखें उसके अंदर है। तो अल्टीमेटली ये बहुत यूजफुल आपको कमेंट्स मिल रहे हैं और मिलेंगे स्कीम को एक्सपोज करने की वजह से। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। वो एजीएम में ना भी कहा था, इट वाज अ डिसीजन कि हमने करनी है। हाँ, लेकिन वो ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि तोला साहब विदाउट एक्सपोजर एफर्ट कर रहे थे बाई लॉज के लिए। जी, वो एफर्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि वी वांट टू टेक अप मार्च अटेम्प्ट। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट से बाई लॉ की चेंज के लिए ना जाएं और पहले ये कमेंट्स लें और उसके बाद प्रोसेस में जाएं तो सितंबर चला जाएगा। अच्छा, तो हम पैरेलल एक्सरसाइज पीआरसी पे मैं 2-3 बड़े क्विक कमेंट देना चाह रहा हूँ। एक तो पीआरसी जब आपने एग्जाम्प्ट किया है ना, 16 डिग्री को एग्जाम्प्ट करती है। 16 डिग्री दो तरह की होती है, एक रेलेवेंट एक नॉन रेलेवेंट। आपकी स्कीम के अंदर नॉन रेलेवेंट की भी एग्जाम्पशन इस वक्त आ रही है, क्योंकि ब्लैंकेट एग्जाम्पशन है, किसी जगह रेलेवेंट डिग्री की इंडिकेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने HSSC के सब्जेक्ट की बेस पे भी थोड़ी हाई परफॉर्मेंस की बेस पे सब्जेक्ट को एग्जाम्प्ट किया है। मेरा ख्याल है, मैं हर जगह ये फोरम पे कहता रहा हूँ, ये पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है। अगर आप कभी किसी ग्रेजुएशन के लिए मैपिंग के लिए जाएंगे तो आपके लिए इशू आएगा, तो आप HSS बेस पे कोई सब्जेक्ट एग्जाम ना करें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर मुझे 2-3 पॉइंट उमर से एक क्लैरिफिकेशन ले लूं इस पे। उमर साहब ये जरा बताएं, एफएससी की बेस पे भी हमने कुछ एग्जाम्पशन दिए है इसमें? जी, पीआरसी के लेवल पे एचएससी और ए लेवल दोनों में एग्जाम्पशंस मौजूद हैं। ये जरा पर्टिकुलरली नोट करके रखें, व्हेन वी विल डिस्कस, तो इस पॉइंट को मैं टच करूंगा काउंसिल में। ये जब आप एजुकेशन कमेटी में होते थे, जहां बात हम करते थे कि एचएससी बेस पे एग्जाम्पशन नहीं, मेरे अपने हमेशा ये व्यूज रहे, वो मैं बात कर रहा हूं 13-17 जी। मैंने भी उस वक्त आपके साथ काम किया। दूसरी बात यह है सर जी, इसमें जो आपने ए लेवल में ग्रेड बी किया है ना, ये हाई परफॉर्मेंस नहीं है ग्रेड बी की बेस पे एग्जाम्पशन। ग्रेड ए लेवल की बेस पे एग्जाम्पशन होनी चाहिए कि वो 13 ईयर एजुकेशन है, लेकिन आप उसमें लेवल रखा है बी ग्रेड। बी ग्रेड इज ए कॉमन ग्रेड, इसमें हाई परफॉर्मेंस इसको काउंट नहीं करते। आप जरूर रखें, लेकिन ग्रेड को आप ड्राफ्ट ग्रेड कर लें। ये दो चीजें हैं, जो कि 3 चीजें मैंने आपसे बयान की हैं। एक मिनट देंगे। ये एडमिन कौन है ताहिर इसका? इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करें, क्योंकि ये पॉइंट साथ साथ नहीं शायद वरना नोट हो सकेंगे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ये कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। यही एक सेशन है जहां हमें मैक्सिमम इनपुट मिलेगी। अच्छा, लास्ट इन्होंने आपको ये बता रहे हैं कि कंटेंट पे फीडबैक नहीं आया। कंटेंट पे फीडबैक इसलिए नहीं आएगा कि बहुत से लोग, जैसे मैं एक आधे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ, बाकी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो हम ही ने ये मोस्टली जो पॉइंट्स हैं, ये मैं कुछ इस बात पे हूँ कि हमने एक वर्किंग करके 28 जुलाई से पहले जो डेडलाइन सबमिट की, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं था डेट एक्सटेंड होगी नहीं। कंटेंट्स के ऊपर आपको वर्कशॉप सेट करनी पड़े। ऐसे लोग जो हैं जो कि एक्सपर्ट रखते हैं, उनके साथ अदर देन दोज पीपल जिन्होंने इसको डेवलप किया है, तो आपको अच्छे, क्योंकि इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल का भी इशू है, टेस्टिंग लेवल का भी इशू है। वो जो हर कंटेंट हमने प्रोफिशिएंसी लेवल, टेस्टिंग लेवल मेंशन किए हैं, उस पर डिलिबरेट करने की जरूरत है। क्योंकि नॉर्मली दुनिया में जो होता है कि कॉम्पिटेंसी के लिए सर्वे या कंसल्टेशन बिफोर पुटिंग दी कंटेंट्स होती है, वो हम नहीं कर सके। लेकिन ये राइट अपॉर्चुनिटी है। 1500 सर्वे किए हैं। नहीं, देखिए हमें कोई सर्वे नहीं आया। ये मेरे दोस्त अगर बता दें कि इनको सर्वे आए हैं तो इनकी बात है। हमें जो कि प्राइम लोग हैं इसमें, हमें कोई सर्वे नहीं आया, इंडस्ट्री को कोई सर्वे नहीं आया। हमने सिफा के सिलेबस की आपके नॉलेज में नहीं है, इंडस्ट्री से ही हमने मोस्टली सर्वे किए हैं। कोई 1500 सर्वे किए इंडस्ट्री से। नहीं, देखिए हमारे रिपोर्ट में एक भी आपका सर्वे नहीं। अगर मेंबर के पास भी नहीं आया, इंडस्ट्री में भी नहीं गया, आपके पास भी नहीं आया, तो सर्वे हमने खुद से तो नहीं बैठ कर बना लिया। इंडस्ट्री का तो पता नहीं, लेकिन टीचिंग कम्युनिटी, मैं प्रैक्टिसिंग मेंबर भी हूँ, वहां भी मुझे सर्वे ये नहीं आया। टीचिंग में नहीं आया, मैं उस पे मुझे नहीं पता। ये जो कंटेंट ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, ये प्रोफिशिएंसी लेवल को, कॉम्पिटेंसी लेवल को एड्रेस करते हैं, इसमें सर्वे होते हैं। दैट्स ऑल सर, आई वांटेड टू से। थैंक यू। इसमें उमर साहब अपने पास नोट कर लीजिएगा कि अगर कंटेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट आए फैकल्टी मेंबर्स का, तो फिर उसको कंसिडर कर लेंगे क्या करना चाहिए, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए।
ठीक। साले साहब आपने डिसिप्लिन आप लोगों ने तय किया है 1-1। नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं सर। आप एक नहीं सर, हमने तो अपना प्रोसेस हमने सब अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया हुआ है। हम ऑन टॉप नहीं, इस तरह नहीं होता ना। हम ऑन टॉप जा रहे हैं कि फर्दर अगर कोई चीजें हैं, कहीं से कोई कमेंट्स आते हैं तो उसको देख लिया जाए। हमने स्कीम रीओपन नहीं करनी है। जो कमेंट्स आएंगे, जो अच्छी चीजें मिलेंगी उसको कंसिडर करेंगे और उसकी बेसिस पे स्कीम चेंज हो सकती है, टू ग्रेटर एक्सटेंट भी हो सकती है, बट हम नहीं इसको फर्दर डिले कर रहे, एज आईकैप नहीं कर रहे। आप देखें मेच्योरिटी लेवल या दूसरे इंस्टीट्यूट्स की भी यहाँ बात हो रही है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट एज प्रेसिडेंट। आई कैन कमेंट ऑन मेनी थिंग्स बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ये नेक्स्ट मिस्टर अहमद ऑनलाइन ले लें जी। ऑनलाइन नहीं सर, मिस्टर अहमद बारी आपको जरूर मिलेगी। जी मुझे अंदाजा है, मुझे ये आप वो सबको मिलेगा, एतबार है मुझे। अहमद आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैन यू हियर मी? यस वी कैन। अपना क्वेश्चन करें। थैंक यू। आपने कल स्टूडेंट्स के साथ भी गालबन मिस्टर प्रेसिडेंट आपने कल सेशन किया। अहमद साहब आपकी इको बहुत पैदा हो रही है, अगर माइक के थोड़ा पास हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगी। क्लियर है जी? अच्छा सर, ऐसे है कि कमेंट तो वही है, हमें सेग्रीगेट कर अगर आप हम कर दें जो सजेशन है जो पीआरसी का, आप सिर्फ सर अजम्पशन अगर खत्म कर दें इंट्रो और इकोनॉमिक्स की, कि जैसे अब बच्चे ने जो करंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सितंबर कैंप देनी है, जो अपना डिवीजन भेज बैठे हैं, जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर बैठे हैं और उन्होंने सितंबर कैंप देनी है, एंड yesterday they are considering to drop the paper of the intro to accounting and economics, और उस वो स्टूडेंट्स टोटल क्योस में है और टोटल कंफ्यूजन में है फ्रॉम द आईकैप लेवल। आई थिंक सो वो स्टूडेंट्स ही हमारा फ्यूचर है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले बात है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट कौन सी है स्कीम की, कब से आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? मार्च जी सर, इंप्लीमेंटेशन मार्च 22। जी जी, मार्च 22 में नया सिलेबस आ रहा है। तो सर वो बच्चा पेपर छोड़ के बैठ गया है, तो उसके लिए और जो वो बच्चा सर किस स्टेज पे खड़ा होगा? क्या वो अब उसको एग्जाम करा दे देंगे आप उसको इंट्रो टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स से वो पेपर बच्चा नहीं देगा? दिस इज एक सिंपल क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ उस बच्चे को आप कहेंगे आप ये पेपर दें, अगर नहीं देगा तो वो फिर उधर अजम्पशन जो है वो पीआरसी का इंट्रो इकोनॉमिक्स दे देगा, तो मैं समझता हूँ सर सारी कंफ्यूजन ही जो है ना वो खत्म हो जाएगी सर। दिस इज माय सजेशन सर। थैंक यू वेरी मच। जो है वो ट्रांजिशन के लिए नहीं बनाई जाती। स्कीम नई स्कीम है, अगले 8 साल इसने कंटिन्यू रहना है। माइनर चेंजेस शायद इसमें आएंगी, कोई मेजर चेंज नहीं आएगी उसके बाद। और नई स्कीम चूंकि लेके आ रहे हैं उसके लिए ट्रांजिशन स्कीम बनाई गई है। ट्रांजिशन स्कीम में किसी को बेनिफिट होगा, किसी को लगेगा डिसएडवांटेज है। ये तो हमेशा होता है सर। अगर मार्च 22 है तो जो बच्चा करंट एएफसी लेवल का बच्चा है वो तो सर इंट्रो पढ़े बगैर एफए1 कैसे दे देगा, जिसने अब एएफसी दे देना सर? ये भी एक मेजर चेंज है जो हाईलाइट नहीं कर सके उमर साहब, कि पहले पैरेलल स्कीम्स चलती थी कुछ अरसे के लिए, वो भी नहीं सब कर रहे। एंड माय प्लीज सर, सॉरी सर, एक सेकंड क्वेश्चन। दिसंबर में क्या एएफसी पुरानी स्कीम के तहत होगा या पीआरसी होगा दिसंबर कैंप? सर स्कीम मार्च 2022 से आ रही है नई वाली, तो नई स्कीम के तहत उससे पहले तो कोई पेपर नहीं हो सकता। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद महमूद है और मैं स्कैन से आपके साथ मुखातिब हूँ और पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट साहब मैं पढ़ा भी रहा हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और टैक्सेशन मेरे एरियाज हैं, फाइनल में भी और कैफ लेवल पे भी। काफ़ी डिस्कशन हो गई है और सबसे पहले तो आपको इस बात का क्रेडिट जाता है कि आपने इस डिबेट को ओपन किया। और ओपन डिस्कशन बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि कैसा भी सवाल आ सकता है, और कल आपने
उनको फेस भी किया। मैंने डिपार्टमेंट को साथ किया वो जवाब दे। नहीं, वो डिपार्टमेंट तो सिर्फ साथ ही है आपके, लेकिन मेरे ख्याल में शायद आप ही हैं। बहरहाल कल जैसे स्टूडेंट्स के आपने क्वेश्चंस फेस किए और उस तरह से आंसर किए, उस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस का सामना तो नहीं है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है जिसको आप बड़ा पॉजिटिवली ले भी रहे हैं। देखिए, हम दूसरे इंस्टीट्यूट की कोई बात नहीं करते, हम अपने आई कैप पे फख्र करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ कि मैं आई कैप का मेंबर हूँ। लेकिन एक बात हमें सीखनी चाहिए कि 11th आवर पे काम करना आदत हमारी नहीं होनी चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है, आप मार्च 22 से करें, आप जो मर्जी डेट देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी मेंबर, हम स्टूडेंट्स को उसके मुताबिक गाइड कर देते हैं। लेकिन 15 जुलाई या जुलाई के महीने में जिस वक्त बच्चा पेपर तैयार कर रहा है अपने सितंबर अटेम्प्ट के, हमने उन बच्चों के साथ ज्यादती की है सर। हमें ये एडमिट करना पड़ेगा और फोरम पे एडमिट करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ उन बच्चों से, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उन बच्चों से। मैं ऐसा समझूंगा तो मैं भी कर लूंगा। नहीं, अगर आप, ये आपकी मर्जी है सर। देखिए, ये तो आपके पास इख्तियार है कि आप इस पे शर्मिंदा हो या ना हो, ये तो आपका इख्तियार है। मैं शर्मिंदा हूँ एज ए टीचर, जिनको मैंने फेस करना है। जिन्होंने, आप एग्जाम्पशन देना चाहते हैं, ये डिबेट बाद में कर लेंगे कि भी कैफ 1 की एग्जाम्पशन होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ये तो उस वक्त होती जब 1 साल पहले ये काम हो रहे होते। बहरहाल अब तो 11th आवर पे आप कंक्रीट मैसेज के साथ आते कि भाई हम ये एग्जाम्पशन दे रहे हैं और ये एग्जाम्पशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है सर, ये नहीं हुआ। अच्छा, इसका मैसेज क्या गया जो आपने कल भी देखा? इस प्रेस्टिजियस आई कैप के साथ हम जो बच्चे हमारे साथ स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे हैं आपको एज अ प्रेसिडेंट आई कैप, हमें एज अ मेंबर आई कैप, हम उस इदारे के साथ एसोसिएट हैं कि जिसके बच्चे, आपने कमेंट्स पढ़े हैं कल, आपके नजर से गुजरे हैं कल स्टूडेंट्स के कमेंट्स, वो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है सर। हमें उनका ख्याल करना चाहिए था। मैं समझता हूँ आपको नहीं, शायद जिसने भी आपको कहा है, मैं ये एज अ मेंबर कह रहा हूँ, मैं एज अ मेंबर कह रहा हूँ कि पूरी काउंसिल की जिम्मेदारी थी। उसको ये या तो 1 साल पहले कर देते, डिबेट करते, वर्कशॉप्स करते, जैसे मकबूल साहब ने कहा आज वर्कशॉप की तो टाइम नहीं है। अगर आप मार्च 22 में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आज तो कोई वर्कशॉप का टाइम नहीं है, आज तो शायद इस डिस्कशन का भी टाइम नहीं है। तो मेरी एक तो दरखास्त ये थी, अब भी है, कि क्लैरिटी लाएं, चाहे सेक्रेटरिएट की तरफ से लाएं। उमैर साहब मुझे सुन रहे हैं कि भाई मार्च की अटेम्प्ट अगर होगी उसमें आईए नहीं पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाए। क्लैरिटी कैसे लाएं? हमने तो बता दिया कि नहीं वो पूछा जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। मतलब प्रेसिडेंट साहब, ऐसा नहीं हुआ है। देखें, ये हम भी, अगर ऐसा हुआ होता तो ये डिबेट ही ना होती जो कल हुई है आपके साथ, जो आज हो रही है। जी बिल्कुल, सब्जेक्ट टू अप्रूवल लिखा हुआ है उस पॉइंट के अंदर। सब्जेक्ट लीगल थिंग। देखें, आप सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने बाई लॉज को चेंज करना होता है, उसकी अप्रूवल चाहिए। सर सितंबर इज नॉट इंडिपेंडेंट। सर पेपर के एग्जाम का इंतजार कर लेते सर, या 6 महीने पहले ये आप बात कर देते। बात इतनी सी है, एग्जाम तो कोई ना कोई चलते रहेगा। नहीं सर, ऐसे देखें आप ज़हन है आपका तो आप तो कहेंगे, लेकिन हमारा मौक़िफ़ है, सुन लें आप, कोई बात नहीं, आप उससे डिसएग्री कर लें। तो मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ, आज हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं एज ए फैकल्टी मेंबर उन स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ जो आपसे शायद कल बात नहीं कर सके। आप लोगों का इंटरेस्ट है? नहीं सर, हमारा क्या इंटरेस्ट है? अगर हमारा इंटरेस्ट होता तो इंस्टीट्यूट हमें 1 साल पहले एंगेज करता सर। इंटरेक्ट भी सबसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट है, आप रिलेटेड हैं, यू आर द स्टेक होल्डर, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, वरना मैं आपसे क्यों इंटरेक्ट करता? सर आपको पता है जिन बच्चों से हम पढ़ाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो शायद आपको, शायद मेरी फीलिंग में आप आ सके। जिन बच्चों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो हमसे मिले और वो लिटरली रो रहे हैं कि सर हम क्या करें। अनफॉर्चुनेट हमारे कुछ मेंबर्स हैं, हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस स्कीम को, जो कि एक तो आई कैप ने बहुत नेक काम किया, उससे आगे नेकी में बढ़ चढ़ के हिस्सा हमारे मेंबर्स ने लिया। हमें एथिक्स में पढ़ाया जाता है कि हमें किसी भी ऐसी से एसोसिएट नहीं होना चाहिए जो अभी इफ एंड बट पे डिबेट हो रही हो। हमारे मेंबर्स ने यूट्यूब पे आके रिकॉर्डिंग्स करके बच्चों को ट्रैक किया। मौका किसने दिया? आई कैप ने दिया। आप सिर्फ एक, हमें, अगर आप हमें अपना हिस्सा समझते हैं टीचिंग में हम रहते हुए, आप 6 महीने पहले हमसे डिबेट करते, आप यकीन जाने कि हमें खुशी भी होती, हम उसकी ओनरशिप भी लेते। अब आप करेंगे इम्प्लीमेंट, हम पढ़ा देंगे। एक तो ये चीज है सर। तो प्लीज मेरा ये आपने रिकॉर्डिंग करा दी, ठीक है, मेरी एक और दरखास्त होगी, इसके मिनट्स जरूर
सर्कुलेट किए जाएं, वो नहीं होंगे। बस वो अगर नहीं होंगे तो रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी सर, जिस तक पहुंचनी होगी वो तो आप छोड़ दें। एक बात। दूसरी चीज इफ्तिखार साहब, मैं मुझे जिम्मेदारी बात है, मुझे तो ये भी मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ और बता देता हूँ। मियां साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा आप हमारे लिए सीनियर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी आवाज बनेंगे, और इसीलिए हम आपसे ये बात कर रहे हैं। इसलिए सब कुछ सुन रहा हूँ, नोट भी करवा रहा हूँ। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, ये जो अभी बात हुई इंट्रो टू अकाउंटिंग की, FA1 मॉड्यूल बी में पहले FA1 होता था और फिर FA2 होता था। 10, 11, 9% रिजल्ट आता था FA1 का। ये अगर जो दोस्त पहले पढ़ा रहे हैं उनको पता होगा, मॉड्यूल बी में पहली दफा बच्चा अकाउंटिंग पढ़ता था, मॉड्यूल सिस्टम जो पुरानी स्कीम थी, 10% से ऊपर रिजल्ट नहीं आता था, और हम एज ए टीचर यकीन करें 4 महीने में पूरा जोर लगाते थे, और बच्चे भी बेचारा पूरा जोर लगाते थे। लेकिन आप जानते हैं इट्स डिफिकल्ट कि आपको अगर कोई अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं है और उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और उसको फलां चीज और फलां चीज करवाई जाए। अब क्या हो रहा है, हम यही कह रहे हैं, हमारी आपसे दरखास्त सिर्फ इतनी है कि अगर आप एग्जाम्शन देना चाहते थे तो पहले दे देते, आप देना चाहते हैं आज अनाउंस कर दें। मैं बच्चों को सबसे पहले जाकर कहूंगा, बेटा एग्जाम्शन हो गई है, अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं है। आपको हम FA1 में तैयारी कराएंगे, 2 दफा बुला लेंगे, दिन में 3 दफा बुला लेंगे, मेहनत कराएंगे, आपको पास कराएंगे इंशाल्लाह ताला। आई कैप हमारा है, जैसी मर्जी वो काम करें, हम उसके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन सर ये इस टाइम जो करेंगे इसका नुकसान क्या होगा? हमारी दरखास्त सिर्फ ये है कि आप अगर PRC के अंदर अकाउंटिंग आ रही है, आप इन बच्चों को वो ऑप्शन दे दें, जैसा कराची में दोस्त बता रहे थे, उनको वो ऑप्शन दे दें कि भाई आप वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दें और आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। लेकिन आप अगर सिर्फ विदाउट एनी वो करेंगे तो एक डिस्क्रिमिनेशन भी आएगी। और मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी सारी डिस्कशन का एक ही पॉइंट है सर, आज से 2 साल बाद ये डिबेट नहीं रहेगी कि भाई, क्योंकि सारे नई स्कीम के होंगे, लेकिन आज कम से कम 4 से 4,000 बच्चा बैठा हुआ है जो आपको देख रहा है सर, आपकी स्कीम के साथ देख रहा है, और उसके साथ खिलवाड़ हो गया है। आई कैप ने भी किया है और हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने भी किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप प्लीज उनकी आवाज बने, आप उनकी बात करें कि बेटा ठीक है, आप काउंसिल में लेके जाएं, हमारे मौकफ को लेके जाएं। मैं एज अ मेंबर बात नहीं कर रहा, मेंबर तो AGM में बात कर लूंगा मैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं एज अ टीचर बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो आपको तरफ देख रहे हैं, जो कल आपसे बात कर रहे थे इस उम्मीद के साथ कि आप उन्हें क्लैरिटी देंगे, और आपने क्लैरिटी नहीं दे सके सर, मैं माफी चाहता हूँ। आप दिस इज नॉट माय जॉब। देखिए कुछ चीजें मेरी भी सुन ले प्लीज। ICAP is not here to advise students कि कौन से पेपर उनको टेकअप करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। This is not our job. We are examination body. Very clear. बिल्कुल सही। हमने एग्जाम देना है, हमने बताया हमने कौन से पेपर्स लेंगे, क्या प्रोग्रेशन आपकी होगी और क्या सिलेबस होगा। सही। चूंकि वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आगे, इसलिए आप सबसे इनपुट ले रहे हैं हम कि अच्छा उसमें हो सकता है हमने कोई चीज ओवरलुक की हो, इनपुट ले लेते हैं, कुछ चीजें आती हैं उसको इंप्रूव कर लेते हैं अपनी चीजों को, ताकि बार बार हमें ट्रांजिशंस में ना जाना पड़े और इसके अंदर हमें फर्दर चीजें ऐड करनी पड़े। दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव। बट दिस इज नॉट आवर बिजनेस एज ICAP कि हम स्टूडेंट को बताएंगे तुम ये पेपर ले लो, तुम ये टेकअप कर लो, तुम वो कर लो। दैट वी विल नेवर डू। नहीं, वो आपसे पूछ भी नहीं रहे सर, वो नहीं, जब आप उसको स्कीम ऐसी देंगे तो वो पूछेंगे। एंड बाय द वे सर, 4 साल पहले जब 8 साल पहले 2013 में स्कीम आई थी, हमने पास से कुछ नहीं सीखा। एज अ नेशन हमारा मसला है, ये आपका नहीं है, मेरा नहीं है, सबका ही है। हम 11th आवर पे काम करते हैं, 11th आवर पे हम कहते हैं ये कर दिया है और ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला नहीं है। हमें सर देखें, हम ये चाहते हैं जो हो गया ठीक है, लेकिन ये जो हम तो उस प्रोडक्ट बन गए, आउटपुट बन गए। सर क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इंट्रो टू अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, अगर आप एग्जाम्शन देना चाहते हैं तो प्लीज काउंसिल मेंबर के साथ डिस्कशन करके हंगामी बुनियादों पर कहें जी हमने एग्जाम्शन दे दिया है, मार्च 2022 से होगा। मेंबर्स को हमने एक पीस ऑफ वो दिया है पेपर, वो कोई डिबेट करेंगे तो माइनर चेंजेस, जैसे आपने खुद कहा है, यू हैव मेड अप योर माइंड, ICAP हैज मेड अप हिज माइंड कि उसने ये काम करना है। तो आप चीजों को नरेट करने की बजाय, डिस्कशन करने की बजाय आप बताएं जी ये इंप्लीमेंटेशन है। एक अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने इसको उस तरह से लेकर चलना है, तो सिर्फ सजेशन ये है कि उसको आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में ले जाएं। एटलीस्ट वो बच्चा एक दफा पेपर दे ले, फिर वो FAR1 में आएगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। FAR1 जब से आइए और FAR1 हुए हैं, FAR1 का रिजल्ट मेरे दोस्त बताएंगे ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया है, क्योंकि बच्चा पहले अकाउंटिंग पढ़ के आता है, उसको एक बेस मिल जाती है, पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ी होती है।
हम उनके साथ देखें सर, बहुत उम्मीदें लेके बच्चे आप इस प्रोफेशन में आते हैं, हम और आप भी शायद इसी तरह आए होंगे, और उसको हम पहले ही ब्रेक लगा के बिठा दें कि नहीं बेटा ये नहीं होना। और इस तरह अब बच्चों के पेरेंट्स हमें फोन कर रहे हैं कि ये क्या कैसा इदारा है यार, आपको आखिर में पता चला था कि बच्चे 4 महीने पढ़ा लेंगे फिर आप कहेंगे एग्जामिशन दे देंगे हम आपको। ये वो सवालात हैं जो हमें जवाब देने हैं सर। तो बस यही दरखास्त थी कि बच्चों का जरूर सोचें, अब सोच लें काउंसिल में जाके, बाकी मेंबर्स के साथ बैठ के सोच लें। थैंक यू वेरी मच। कोई क्लैरिटी नहीं आनी फर्दर इस पे, ये क्लैरिटी हम दे चुके हुए हैं, स्कीम में दे चुके हुए, इससे फर्दर कोई क्लैरिटी नहीं आई। एक्सपोजर ड्राफ्ट का मियां साहब, क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि जो इसमें कोई कंफ्यूजन है उसको क्लियर करे कोई। मैं ये कह रहा हूं कि एग्जामिशन के लिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हमने जब ये कहा कि आप सिलेबस में चेंजेस, बाकी चीजें आप बताएं, एक्सपोजर का मतलब ये हम किसी को नहीं मना कर सकते किसी रास्ते से, हम किसी को मना नहीं कर सकते किसी रास्ते से। थैंक यू। अब हमारे साथ है मिस्टर जिशान आबिद, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। Assalamu alaikum sir. My question for the PRC sir. बात चूंकि बार बार रिपीट हो रही है और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं उसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन करूं, बट विद रेफरेंस टू द एजुकेशनिस्ट, let me say this, that it would be a blunder if we go and give the exemption for the intro and eco, and that's only my point. The decision lies with those who are being having the helms of the affairs. But I want my point to be noted that there is no logic. I request the education department to give a single logic of giving the exemption other than the para which is being inserted in the exposure draft. Do Umair Saab or Shumaila have any logic to tell a person coming with the FSC background, with the sciences, and he has done the AFC, he is allowed not to appear for the economics and he is allowed not to appear for the intro? If the education department has the logic, I will love to hear from them. That's my first point. Second is, we are giving the exemptions to the HSSC and A levels. I second to Maqbool's point, and also Barji President also consented over this, that in his personal capacity, he is also being of his opinion that this exemption should not be there. But my further point is that there is no logic to give the exemption to the O-level student for their accounting, and the exemption is not being allowed for those who are coming with the commerce ICOM for their accounting base, and it is being very categorically being mentioned that they cannot get the exemption of introduction to accounting. There is no rationale over this. So my second request will be to get the answer from the education department to give the rationale for excluding the right of exemption to the HSC for the intro to accounting. Do their syllabus don't have the mapping, or is there anything else which prohibits them to stop that exemption? My third point is, ये कर दें आप, O level कह रहे हैं या A level कह रहे हैं, किसकी बेस पे? सर A levels की बात कर रहा हूँ, A levels और HSC की बात करके चाह रहा हूँ। A levels के अंदर वो अकाउंटिंग की एजुकेशन है, उसकी वजह से उसको कंसीडर कर लिया जाता है। सॉरी सर, बाकी 12 साल की एजुकेशन है। मैं तो सब्जेक्ट के कंटेंट की मैपिंग की बात करूंगा। अगर 13 साल या 12 साल के साथ सब्जेक्ट की मैपिंग डिफरेंट हो जाती है तो दैट कैन बी द रैशनल, लेकिन जो बच्चा वहां पर पढ़ रहा है एचएससी के अंदर, उसके अकाउंटिंग का सिलेबस, कंटेंट और पेपर का लेवल कतन भी मुझे नहीं नजर आता कि वो ए लेवल से डिफर है। थर्ड पॉइंट इज सर रिगार्डिंग द टाइम लिमिटेशन। हमने बच्चे को पीआरसी के लिए देने हैं 12 महीने, 3 महीने के बाद वो अपना पेपर अटेम्प्ट करेगा और उसको 12 महीने के अंदर 5 पेपर परफॉर्म करने हैं, और हम उसको 3 महीने ग्रेस देंगे अगर वो अपने 3 पेपर पास कर सके और अगले 2 पेपर पास ना कर सके। पर इस वक्त जो बच्चा अपना पेपर टेकअप करता है, नॉर्मली वो 3 करता है या पेपर 2 टेकअप करके चलता है। ये पेपर हमारे पास एएफसी से ही आ रहे हैं, वही पेपर की हमारे पास सारा कंटेंट है। अब उसमें जब उसने पहली अटेम्प्ट दी, नॉर्मली वो 6 मंथ्स के ऊपर बच्चा अपने आप को तैयार कर रहा था, 3 महीने के ऊपर बहुत कम बच्चे अपेयर होते रहे। यहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि जो हम उसको 3 मंथ्स का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, हम उसको उस बच्चे को जो किसी भी सब्जेक्ट की हार्डनेस की वजह से, खासतौर पे क्वांटिटेटिव मेथड, उसमें बच्चे 4-4, 5-5 अटेम्प्ट लगाते हैं, आपके पास डाटा अवेलेबल है, हम उस बच्चे को 3 महीने तो उसके शुरू में निकल गए, वो तो हमने कहा वो अपेयर ही नहीं हो सकता, हम उसको 1 साल का टाइम दे रहे हैं।
हर बच्चे ने हर महीने बैठ के अटेम्प्ट नहीं देनी, उसको सिलेबस के लिए दोबारा से रिविजिट करना पड़ता है, तो 4 महीने का सिलेबस है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 मंथ्स का ग्रेस पीरियड कम है। हम उस बच्चे को लूज कर सकते हैं एक क्वांटिटेटिव मेथड के सब्जेक्ट की वजह से, और वो बच्चा टेक्निकली तौर के ऊपर सिर्फ 2 या 3 अटेम्प्ट्स के लिए एलिजिबल बनेगा। तो मेरे ख्याल में ये टाइम लिमिटेशन अननेसेसरी है या इसको एक्सटेंड होना चाहिए। दैट इज माय पॉइंट। चौथा सर मेरा लास्ट पॉइंट फॉर द पीआरसी ये है कि हमने जितनी भी मीटिंग्स एटकॉम के साथ और जितनी भी मीटिंग्स उमैर साहब के साथ डिस्कस की, लॉ के सिलेबस के अंदर भी हम टीम के साथ बांट रहे, तो एक ही हमारी लॉजिक और रैशनल था पूरी एजुकेशन टीम का कि हमने इस बात को इंश्योर करना है कि हम बच्चे को एक ही चीज बार बार मत पढ़ाई जाए, वही उसको ऑडिट में ना पढ़ाएं, वही उसको अकाउंटिंग में, तो हम सिलेबस को उस जगह पे डाल दें। अब हमने लॉ के सिलेबस को, बेशक वो कैफ में जाके बात होती है, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया उसकी इंपॉर्टेंस को मानते हुए। What is the rationale to add the 5th subject of introduction to business? Let me narrate the content of introduction to business ताकि हम उसको देख सकें कि हम बच्चे के साथ डुप्लीकेशन ही ट्रिप्लीकेशन पर नहीं कर रहे हैं। सर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर बच्चे का जो आपके पास बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑपरेशन का कंटेंट है, ये सारा कंटेंट वो है जो कि उसने आगे सीलो में, ये सारा कंटेंट वो है जो उसने आगे एमलो में, और ये सारा कंटेंट वो है जो कि उस बच्चे ने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में स्वाय मुझे एचआर का एक छोटा सा मैट्रिक्स का पोर्शन है मुझे, और जिसकी वेटेज जो है वो 10% है, कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो बच्चे को यहाँ पर हम दोबारा बच्चे को यहाँ पर पढ़ाएं। मुझे उस बच्चे को अगर पार्टनरशिप समझानी है, मुझे उस बच्चे को अगर बिजनेस की टाइप समझानी है, तो मुझे फिर लॉ का सेक्शन रेलेवेंट लेके जाना पड़ना है जो उसने पढ़ना है। मुझे अगर उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स लेके चलनी है, तो मुझे फिर उसको उसी पोर्शन पे लेके चलना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो है ये भी एक लॉ की ही डेरिवेटिव फॉर्म है, और हमने ये तीसरा सब्जेक्ट जो है उसको कंबाइन करके यहाँ पढ़ा दिया है। मुझे इस सब्जेक्ट की यहाँ पर कोई रैशनल समझ नहीं आती। तो यार मेरी ये 4 पॉइंट्स हैं। आई नीड द कमेंट्स फ्रॉम योर गुड ऑफिस एंड फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट। थैंक यू सर। मैं तो इस पे कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर लेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो पर्टिकुलरली आपने सर्टेन टॉपिक्स की के डिफरेंट पेपर्स के अंदर टेस्ट किए जा रहे हैं, इस पे अपने कमेंट्स जरूर हमें भेज दीजिएगा लिख के, ताकि इसको देख लें, हम एक दफा और रिव्यू कर लेना चाहिए हमें। आई कैन नॉट कमेंट अपॉन कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कोई टेस्ट डिफरेंटली किया जा रहा है या क्या चीजें इनके माइंड में है, बट इसको कंसिडर जरूर कर दिया जाएगा आपके व्यू पॉइंट को। जी सलाउद्दीन सर, जी माइक ऑन करो यार। जी सबसे पहले तो जनाब आप प्रेसिडेंट आईकैप का और सेक्रेटरीट का बहुत शुक्रिया, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी। एक पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी आईकैप हैं, सो अगर आज कोई बात ऐसी हो तो प्लीज़ इसको इस तरह से ना लिया जाए कि इट्स समथिंग अगेंस्ट मिस्टर ए और अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट इज़ समथिंग विच वी शुड डिस्कस कलेक्टिवली। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली, आप पुराना मानिएगा, मैं 2-3 मिनट लूंगा ज़्यादा। एडमिनिस्ट्रेटिवली एक पहली कंफ्यूजन क्रिएट की, जो ईमेल फर्स्ट आई उसमें आपके साथ जो टाइम था एग्रीड वो 11 बजे का था। हम सब ने अपनी अपनी, कम से कम मैंने अपनी अपॉइंटमेंट सारी उस तरह से सेट की, दोबारा उसको 12:30 कर दिया गया। तो अगर चेंज किया गया था तो क्लियरली बताना चाहिए था सेक्रेटेरिएट को कि जो इनिशियल ईमेल में था 11 से 12:30 कर दिया गया। एक तो ये मेरी रिक्वेस्ट है नेक्स्ट टाइम के लिए सर, बात फेयर है। ठीक है सर। दूसरा सर, अगेन फिर वही बात की, ये किसी के हम आईकैप हैं, आपके साथ मिलके हैं और आप तो हैं जी, माय प्लेयर सर। इसमें मसूद साहब के जो ईमेल आई 13 जुलाई वाली, मेरे ख्याल से उसमें सारी जो कंफ्यूजन, सारे दोस्त परेशान हैं, उसमें वर्ड एक ऐड कर दिया गया जो कि एक्सपोजर ड्राफ्ट में नहीं था। उनको यकीनन काउंसिल की इंस्ट्रक्शन होगी, वो वर्ड ऐड कर दिया गया स्प्रिंग 2022 का। सारी डिस्कशन उससे स्टेम हुई, बच्चों ने वो कर दिया गया। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं। पॉइंट ये था कि मेरे ख्याल से वहां पे माइट बी रॉन्ग, आईकैप सेक्रेटेरिएट को ये कहना चाहिए था, जैसे बाकी स्कीम में कहा गया, किसी जगह डेट कमिट नहीं की गई, बल्कि डैश 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 यूज किया गया। मसूद साहब की कवरिंग ईमेल में भी यही कहा जाना चाहिए था कि स्कीम के लिए आईकैप कोशिश करेगा, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल विद इन दिस मंथ ये इफेक्टिव हो जाएगी। सो आज हमारी डिस्कशन का मैं समझता हूँ कि बहुत सारा मैटर उससे आउट हो गया होता। मुझे 10 सेकंड दे दें उमैर साहब, ये ईमेल और जो स्कीम में हमने जिस तरह से इसको एलेबरेट किया हुआ है,
इसका एक कंपैरिजन मुझे आप भेज दीजिएगा। सो ये अगर I would like to review. जी ये कर लेते हैं तो ये आज की कल का सेशन आपका और आज का बहुत सारा सेशन टाइम बच जाता है आपका। तीसरा सर, मैं अगेन कुछ बातें रिपीट करनी पड़ेंगी कंक्लूजन पे करने के लिए। हमने AFC के स्टूडेंट्स के 250 नंबर का पेपर लेते थे, और पहले मैं ये मानता हूँ कि ट्रांजिशन में हमेशा ऐसा ही होगा, कोई विन करेगा कोई लूज करेगा, और शायद चूंकि मैं इस एजुकेशन कमेटी में मुझे कभी कोई इन्वाइट कर लेती थी, तो इसमें आएगा कहीं ना कहीं आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा, कोई विनर होगा कोई लूजर होगा, ये सारी चीजें अपनी जगह है। हमने AFC के 250 नंबरों पे 500 नंबरों का क्रेडिट दे दिया, फेयर इनफ। उस AFC के बच्चे ने अब जब कैफ में आना है तो उसने कैफ के 8 पेपर देने हैं 800 नंबर के, जो पुराना वाला है उसने 9 पेपर देने हैं। सो टेक्निकली इस ट्रांजिशन की वजह से 350 नंबर का क्रेडिट ICAP ग्रांट कर रहा है। मेरी इसमें सजेशन, जो बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी कह दिया है मुख्तलिफ अंदाज से, इस एक रैशनल डिस्कस ये हुआ था कि ट्रांजिशन उस तरह से पैरेलल नहीं आएगी। अभी उमैर साहब ने भी कहा, मैं उनकी तरफ भी आऊंगा, ऐसा नहीं है। स्कीम में ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है। कैफ की स्कीम में जाके देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट्स के आखिरी 3 पेपर रह जाएंगे उनको 2 साल दिए जाएंगे पुरानी स्कीम के तहत करने के लिए। सो ऐसा नहीं है कि वो है, या तो उसको ठीक करें, वरना ये क्लैश एक रहेगा। या तो ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है या नहीं है, ये कर लेते हैं अभी जी। अगर ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है तो जैसे बाकी सारे दोस्तों ने भी किया, हमारी भी यही एज एकेडमिशियन दरख्वास्त है कि एक ट्रांजिशन का पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए उन AFC स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइमरीली, ये उमैर साहब को बता भी चुका हूं मैं, ऑलरेडी कॉल हो चुकी है बात, लेकिन मैं इस फोरम पे भी करना चाह रहा था कि प्राइमरीली PRC का एक अकाउंटिंग का और इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो, उसके ऊपर एक ट्रांजिशन का पेपर साल के लिए या किसी देर के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। सो उससे वो सारी बातें जो इस वक्त कंसर्न सारे दोस्त रेज कर रहे हैं, एक तो वो 350 नंबर वाला क्रेडिट भी किसी हद तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ जाएगा कि ICAP ने उसका एक पेपर और ले लिया। ये उमैर साहब नोट करें, ये जो 2-3 चीजें इसका आपने जवाब भी देना है इनके बाद। क्योंकि ये सारे दोस्त जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है कि बगैर वो पढ़े हुए इंट्रो टू अकाउंटिंग स्कीम व्हाटएवर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मगर मैं एक चीज सिर्फ शेयर कर रहा हूँ सर, नॉट एज ए डिफेंस आर्गुमेंट सर। हमारे पास क्वेश्चन एक ये था काउंसिल में कि जो AFC जिसने कंप्लीट कर लिया और नई स्कीम आ गई और वो कैफ में चला गया, तो क्या उसे हमें पुल बैक करना चाहिए? अब कि कैफ में तो वो अब आ गया, तो क्या उसे भी पुल बैक करें? अच्छा। तो वहां जनरली जो प्रिवेल किया डिसीजन वो ये था कि नहीं, हमें पुल बैक नहीं करना चाहिए, ट्रांजिशन में सिर्फ ये आएगा जी। और एक जो ख्याल है कि जिन लोगों ने कैफ 1 और 2 कर लिया होगा उनके साथ ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी, उनको उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा आगे जाके। बेसिकली मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है, बट आई एम नॉट एजुकेशनिस्ट, आप बेहतर बता सकते हैं, कि जिन्होंने FAR 1 करना है उसको बहरहाल वो सिलेबस पढ़ना, पढ़ना है। तो उसको जिसने कैफ 1 और 2 किया हुआ है उसको बेनिफिट मिल रहा है उसका इनडायरेक्टली, बट डायरेक्टली नंबर ऑफ पेपर्स में नहीं मिल रहा सर। वो भी मिल रहा है, देखिए उसको 8 पेपर मिल गया, कम हो गया, उसके डिबेट की जा सकती है। सर आपने एक पर्सनल कमेंट किया तो इसलिए आपकी परमिशन के साथ आपके साथ ताल्लुक का वो लेते हुए प्रोग्रेटिव लेते हुए आपने कहा कि हम एग्जामिनेशन बॉडी है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। हम एग्जामिनेशन का फंक्शन भी है हमारा, वरना इस स्कीम का नाम आप ऑर्डिनेंस पढ़ लें, उसमें मुझे दिखा दें कहां है। मैं कुछ और कह रहा हूं सर, मैं कुछ और कह रहा हूं सर। मैं देखें, बीइंग प्रेसिडेंट मुझे लॉ से आना है कि मेरा लॉ क्या कहते हैं, जिसके तहत मैं प्रेसिडेंट हूं, जिसके तहत मैं काउंसिल में हूं, और जिस लॉ के तहत मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आज की डेट में हमारे कोई एजुकेशन का रोल नहीं है सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि उसी एग्जामिनेशन को पास कराने के लिए एजुकेशन का एक रोल है, तभी तो इस स्कीम का नाम एजुकेशन स्कीम रखा गया, वरना तो इसका नाम एग्जामिनेशन स्कीम होता है। सो एजुकेशन का रोल है, उसी रोल को सपोर्ट करने के लिए ट्रांजिशन की ICAP पर, मगर नहीं आप कोई भी लॉ, हमारा लॉ भी देख लें, कहीं भी नहीं है। सो दूसरा, अभी कंटेंट्स पे कहा गया कि फीडबैक नहीं है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी क्लैरिटी कर दी कि पहले चूंकि डेट 28 थी तो हम भी 28 पे भेजना चाह रहे थे, वो डेट आ गई तो हम एज अ एजुकेशनिस्ट होल्ड किया हुआ है, तो हम उसको भेज दें यार ताकि हम वर्किंग शुरू करवाएं। अच्छा, इसमें सर एक और सजेशन जो कि वो PRC से रिलेटेड आगे भी है, आपकी जो अनाउंसमेंट्स हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि किताबें भी तैयार हैं, तभी ज़ाहिर है ICAP ये अनाउंस कर रहा है। पूछ लेते हैं तभी तो देखिए ना, आप अभी 8 अगस्त को आपने कहा 8 अगस्त तक कमेंट्स दें, फिर ओवरनाइट तो स्कीम फाइनलाइज नहीं हो जाएगी। सर प्लीज मेरी बात पूरी करने की इजाजत दें। ओवरनाइट तो स्कीम फाइनलाइज नहीं हो जाएगी, कोई हफ्ता 10 दिन आप लगाएंगे, उसके बाद आगे अप्रूवल होगी, गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी, जो भी है। चलिए गवर्नमेंट की अप्रूवल को हम
करते तो फिर ICAP के पास किताब तो होनी चाहिए कि सितंबर के एग्जाम लेने के बाद बच्चों को अगले के लिए किताब दे। फिर क्या कॉलेजेस को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है? देखिए बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ बैठ के सेक्रेटेरिएट से पूछती है। सर मैं आपके साथ मैं सिर्फ ज्यादा एजुकेटेड हो रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम खुशगुमानी करते हैं कि किताबें तैयार हैं तो बीइंग एजुकेशनिस्ट हम ये चाहेंगे कि वो किताबें भी एक्सपोज कर दी जाएं, ताकि चूंकि सिलेबस देखें जब तक एग्जैक्ट कमेंट्स जो वर्कशॉप का आइडिया फ्लोट किया गया टेक्निकली वो यही है, क्योंकि सिलेबस और बुक्स हैज टू बी वेल कंबाइंड। तो मेरी एक सजेशन है कि वो उसको किया जाए। इसके साथ ही सर अगली मेरी सजेशन ये है कि एग्जाम डेट शीट भी ICAP अनाउंस करे, क्योंकि देखिए स्टडी प्लान तब तक नहीं बन सकेगा, हम कर नहीं सकते वो जब तक हमारे पास बायलॉज की अप्रूवल ना हो। सर जैसे बाकी चीजों का आपने ड्राफ्ट दे दिया, उसका भी ड्राफ्ट दे दें। लोगों ने तैयारी करनी शुरू करनी है ना। अब आप जो बता रहे हैं जो ट्रांजिशन का बच्चा है जो सितंबर में, आप कह रहे हैं टेंटेटिव डेट दे दी जाए, टेंटेटिव डेट दे दी जाए सर, तभी वो प्लान कर सकेगा ना कि मैंने सितंबर में ये पेपर देना है, अगली स्कीम इंशाल्लाह इफेक्टिव हो जाएगी तो मेरा ये पेपर बनेगा। जिससे टेंटेटिव डेट दे दी जाए सर। दूसरा सर एक मेरा आपके साथ काफी देर इस पे डिस्कशन रही, एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग को प्री कर दें। मैं वो दोस्तों से एग्री करता हूँ, HSC करना है, A लेवल करना है, उसको रिजल्ट के बाद जब रखते हैं ना तो हम गुड प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट लूज कर जाते हैं। सो उसका बड़ी डिटेल से क्राइटेरिया देखने की जरूरत है कि बच्चा जब ICAP में रजिस्टर होने के लिए आए तो हमें क्लियर हो कि उसकी एग्जामिनेशन होनी है कि नहीं होनी। हम उसको लटका देते हैं 3-4 महीने के लिए, तो वो इम्पैक्ट करता है उसकी स्टडीज को। ये किस किस्म के स्टूडेंट होते हैं? लाइक जैसे बोर्ड से आ रहे हैं, हम कहते हैं कि 60% आ जाए, बोर्ड से आ रहे हैं और हाँ जी, तो हम उसको फर्स्ट ईयर पे ले जाएं। देखिए अगर तो उनका सिलेबस सेम है और सारा कुछ वही एग्जाम सिस्टम है फिर तो टाइम नहीं लगना चाहिए। नए बोर्ड के लिए तो समझ आती है बट नॉट अदरवाइज। लेकिन सर ऐसा आप सेक्रेटेरिएट से चेक कर ले, 3 माह लग जाते हैं। स्वाधीन साहब इसको देख लेते ना सर। मेरे कुछ और कमेंट्स हैं, मैं अब बाकी दोस्तों को फिर आई स्टेप डाउन, दोबारा मौका मिलेगा। थैंक यू। और मेरे साथ जरा इन कुछ सवालों के जवाब दे दें, पर्टिकुलरली जो मुझे नजर आ रहा है कि स्टडी मटेरियल आपका तैयार है या नहीं है और क्या उसमें कर रहे हैं। और दूसरा ये इंटरनल वर्किंग कर लें, बताने की जरूरत नहीं इस वक्त अभी कि टेंटेटिव डेट्स हम क्या दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो इंटरनली डिसाइड कर लेंगे उस पर चीजों को। मगर बाकी जो इनके सवाल हैं वो जरा जवाब दे सकें तो दे दें। और एग्जामिनेशन पे यस वी मस्ट फोकस ऑन दैट कि एक स्टूडेंट जब रजिस्टर होने के लिए आए, सेम अगर बोर्ड है, सेम पेपर है, तो उसकी एग्जामिनेशन क्या हम उसे दे सकते हैं, जल्दी प्रोसेस कर सकते हैं, या टेंटेटिवली उसको बता सकते हैं जी ये तुम्हारी एग्जामिनेशन हो जाएगी या नहीं। लाइक फॉरेन इमिग्रेशन के लिए भी आजकल तो ऑटो स्कोरिंग भी हो जाती है, तो हमें भी कुछ ऐसी चीजों पे काम करना चाहिए। तो मेरे साहब इसको जरा देख लें, दैट विल बी आवर प्रोजेक्ट फॉर अगस्त। बाकी आप जवाब दें जी। सबसे पहले बुक्स का है। बुक्स में 2 बुक्स के अलावा सब अपने रिव्यू स्टेज पे हैं, 2 बुक्स रिव्यू पे जाने वाली हैं। तो बुक्स इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी 1 अक्टूबर को, यानी सितंबर का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद 1 अक्टूबर को हम चाहेंगे कि जो भी फिनिश होती रहे वो हम अपने टीचर्स से सिर्फ प्राइवेटली शेयर कर लें, ताकि वो अपने उस पर कोई अगर उनको इम्प्रूवमेंट देनी है तो दे दें। वो फिर 1 अक्टूबर से पहले अवेलेबल, लेकिन 1 अक्टूबर को इंशाल्लाह स्टूडेंट और सबको लाइव अवेलेबल होगा। अब ये जरा क्लैरिटी क्या है, ये कंफ्यूजन पैदा होने शुरू हो जाएंगे। 1 अक्टूबर को तमाम बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी या 1 अक्टूबर से पहले अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगी? और 1 को एवरीथिंग रेडी। हमारा प्लान ये है कि जो भी बुक रिव्यू हो जाए और हम फॉर्मेटिंग और टाइप सेटिंग पे जाएं, उससे पहले हम अपने टीचर्स के साथ शेयर कर लें, उनको कम से कम 20-25 डेज दें कि उसको देख सकें। 1 अक्टूबर को हम तमाम स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बुक लाइव सजेशंस अभी ले लेता हूं आपसे सबसे। जी और बताएं। दूसरा एक कोई इशू आया कि एग्जामिशंस का रिजल्ट से पहले फर्स्ट ईयर की बेस पे एग्जामिशन अवार्ड कर दी जाए और फिर रिजल्ट को उसको कंफर्म कर दिया जाए। ये हम इंटरनली जो हमारा डिपार्टमेंट है एग्जामिनेशन उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अवार्ड तो नहीं कर सकते, मगर उसको हम बता दें कि इस बेसिस पे ये हो जाएगी, इतने % होगा। जी, मतलब ये उनको कंफर्म कर दें प्रोविजनली कि योर एग्जामिनेशन इज सब्जेक्ट टू पासिंग दी। ये हमने अगस्त में इस पे काम करना है और एग्जामिनेशन को भी साथ दे लीजिएगा। विल होल्ड अ मीटिंग नेक्स्ट वीक।
अपरेंटली ऐसा लगता है कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने वो वैसे ही 3 months का कूलिंग ऑफ पीरियड रखा है एग्जामिनेशन और पीआरसी के दरमियान। वो मीटिंग नेक्स्ट वीक, राइट, ये था, मैं नोट कर लूं, जरा मीटिंग करनी है। ठीक है कि एक ये सलाउद्दीन साहब को शायद एक कंफ्यूजन है कि हमने ट्रांजिशन जो है पैरेलल रखी है, लेकिन जो डायरेक्टिव है उसमें ट्रांजिशन स्टार्ट होती है कि स्टूडेंट को दे शैल बी गिवन क्रेडिट इन कैफ अंडर द स्कीम अकॉर्डिंग टू द मैपिंग स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन। पहले मैपिंग हुई, क्रेडिट अवार्ड हुए, द रिमेनिंग पेपर पास करने के लिए उनको 6 मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग पेपर। तो रिमेनिंग पेपर क्रेडिट भी वो ले लें और फिर बाद में रिमेनिंग पेपर पुराने सिलेबस पे चले जाएं, ऐसा हमने सोचा नहीं। लेकिन इसमें अगर ऐसी कोई क्लैरिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो हम रिमेनिंग पेपर और क्लियर कर देंगे FAQs में भी, अदरवाइज रेगुलेशन क्लियर है कि कोई पैरेलल कैफ नहीं हो रहा। हाँ, मगर उसमें शायद एक क्लैरिफिकेशन आपको देनी पड़ेगी कि अगर ये पेपर रहता तो उसकी जगह नए सिलेबस में, नए स्कीम में ये वाला पेपर देना पड़ेगा, फिर वो क्लैरिटी आ जाएगी। इसको रेगुलेशन तो क्लियर, मैं कह रहा हूँ FAQ में, FAQ में बहुत क्लियरली इसको टेबल बना देंगे, आसान हो जाएगा। मैं एक मिनट जी, वो तो ये कैफ लेवल पे, आप कैफ लेवल पे कह रहे थे ना, कंफ्यूजन। नहीं, अदरवाइज भी नहीं, अभी वो कह रहे हैं नहीं है, तो कोई क्लैरिफिकेशन आई कैफ की तरफ से चाहिए तो वो हम दिलवा दें ताकि सबको फायदा हो जाए। माइक दो यार जरा, ये उमैर साहब गौर से सुने जरा इनका कमेंट और देखें इफेक्ट है या नहीं। जी उमैर साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्कीम में आप जरा देख लीजिए, मेरे पास इस एग्जैक्ट पैरा मैं ऑफिस जाके बता दूंगा। हमने ये कहा हुआ है कि कैफ के आखिरी 3 पेपर रह जाएंगे तो 2 साल होंगे। जो आप बता रहे हैं वो भी स्कीम में लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। यही मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि स्कीम में से उस पार्ट को निकालना पड़ेगा, तब ये स्कीम अपना स्टैंड करेगी। नहीं, उसमें कैफ के लिए ये इन्होंने कहा हुआ है कि अगर आपके 5 या अपना 3 से ज्यादा अगर पेपर रहते हैं पास करने वाले तो 6 months फॉर ईच पेपर आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बजाय टाइम लिमिटेशन पे चले गए। तो इसका मतलब अगर 5 पेपर रहते हैं तो 2.5 साल बनेंगे उसके। उसके बाद एग्जामिनेशन, टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट पे क्वेश्चन था, वो हम इंटरनल डिस्कस करके वो भी डिस्कस कर लेंगे। जो टाइम लिमिटेशन है, इट डज नॉट मीन के कोई 2 किस्म के पेपर बनेंगे, एक ओल्ड के तहत एक न्यू के तहत। पेपर 2 नहीं बनने, मैं सर पेपर एक ही बनेगा। I'll get back on this. चलिए मैं सर I'll get back on this। अभी ये वो डॉक्यूमेंट्स आपके अपने व्यूज वापस आपके हो सकते हैं। हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट अभी, मैं तो जो स्कीम है उसकी बात कर रहा हूँ जी, मकबूल साहब हाईलाइट कर रहे थे कि अभी उमैर साहब की भी एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है जो उनको यहाँ बतानी चाहिए। वो ये है कि अभी सिलेबस ही फाइनलाइज नहीं है। ये सारे सेशंस कंटेंट पे, अभी आपने खुद पॉइंट पे लिखा कि फीडबैक कंटेंट्स पे मांग रहे हैं। सो ये तो वो ये चीजें आपस में लिंक्ड है ना, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ड्राफ्ट बुक्स एक्सपोज कर दी जाएं, क्योंकि जाहिर है फाइनल बुक्स तो जब तक सिलेबस पहले फाइनलाइज होगा फिर बुक्स फाइनलाइज होंगी। सो ऐसा नहीं हो सकता। सिलेबस फाइनल है, हाँ नहीं सर, फीडबैक के बेस पे कोई इनपुट अगर ऐसी आती है कि चेंज करना पड़े तो वी विल कंसिडर। नहीं सर, ये वैसे माशाल्लाह पहली दफा ही हो रहा है कि किताबें बन गई हैं, कंटेंट्स फाइनलाइज के लिए हमें ED दिया गया है। ये भी हमारे पास एक अच्छी चीज़ है जो हमें इंशाल्लाह ताला हमें मिली है। पहले सर ED होता है, जिस तरह आपने दिया उस पर कमेंट्स होते हैं, उसका कोई फाइनल माइंड नहीं बनाया जाता कि हमने फलां काम कर देना है। जो हमने किया हुआ है ठीक है आप करें। फिर उसके बाद अगला पॉइंट होता है जब सिलेबस, हमारे पिछले एजुकेशन स्कीम में भी सिलेबस में कुछ और लिखा हुआ है, किताब में कुछ और लिखा हुआ है, पढ़ाया कुछ और जा रहा है, पेपर किसी और चीज का आ गया है। ये उमैर साहब में बैठे हुए हैं, इनसे कई दफा हमारी डिस्कशन हुई है, फोन पे हुई है कि भाई आप देखें, आखिर करते करते फिर वो एडेंडम्स आते हैं कि जनाब ये नहीं है, ये है, इसको समझा जाए, इसको ना समझा जाए। ये काम भी होते रहे। तो ये पहली दफा हो रहा है, माशाल्लाह हम बहुत तरक्की कर गए कि सिलेबस के कंटेंट्स अभी डिसाइड नहीं है, उस पर हमसे फीडबैक मांगी जा रही है कि आप बताएं, 8 अगस्त तक बता दें चले, और किताबें फाइनलाइज हो गई हैं, रिव्यू हो रही हैं। माशाल्लाह सर बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। देखें, आप लोगों के कोई भी व्यूज हो सकते हैं, मैं ICAP के बिहाफ पे कह रहा हूँ सिलेबस इज फाइनल, अनलेस आपसे ऐसी चीजें आ जाए जिसकी वजह से हमें सिलेबस में कोई चेंजेस करनी पड़े, दैट दोज विल बी कंसिडर्ड, बट अदरवाइज दिस इज फाइनल।
किया, आपने कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड के ऊपर लोगों की इनपुट भी नहीं ली, ये डिलीट करना ये करना, और आपके पॉइंट से फाइनल हो चुका है, तो ये एक्सपोजर तो फिर गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात हुई ना, वाले साहब कहते होते आई वॉच इसको। तो सर ये भी हुआ करता था, इस दफा ये नहीं हो रहा। थैंक यू। मिस्टर उस्मान का हम ले लेते हैं क्वेश्चन। उमैर साहब, और कोई आपके आंसर हो गए सारे सलाउद्दीन के क्वेश्चन के? जी, एक टेंटेटिव डेट शीट की बात की थी, वो भी हम देख लेंगे कि उसकी क्या यूटिलिटी है, और अगर है तो उसको इरफान के साथ डिस्कस करके उसको कर सकते हैं। जी, और ले लें जी। उस्मान साहब क्वेश्चन कर लें अपना। थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम सर, एग्जामिनेशन के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव नोट की तरफ चलते हैं सर। सर मेरे मुताबिक कैफ 1 को पढ़े बगैर कैफ 5 नहीं पढ़ी जा सकती रिपोर्टिंग। कैफ 1 को पास करके कैफ 5 पढ़नी चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सो जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, अभी जो सेशन चल रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन इतनी लेट अनाउंस हुई है कि उन्होंने कैफ 1 पढ़ लिया, तो बेसिक नॉलेज तो उनके पास है। सो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मेहनत करा के हम उनको कैफ 5 यानी कि जो रिपोर्टिंग 1 का पेपर है वो कराया जा सकता है, क्योंकि अब अगर एग्जामिनेशन विड्रॉ होती है तो बहुत से स्टूडेंट्स ने FAQs की बेस पे, क्योंकि बहुत कैटेगोरिकली उसमें लिखा हुआ है कि जी आप रिफंड भी ले सकते हैं, अब अगर एग्जामिनेशन विड्रॉ की जाती है तो वाकई इंस्टीट्यूट के इमेज पे बात आएगी। सो विड्रॉ तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वो दे दी गई है कैफ 1, वो पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। थोड़ा बहुत उनको इशू आएगा, लेकिन एज अ राइट हमारा भी कुछ फर्ज बढ़ता है कि हम थोड़ा सा मेहनत करके उनको तैयार करा लें। सर जो PRC के एग्जाम्स है उसके ऊपर थोड़ी सी कॉमेंट ये था कि जो रिजल्ट है हमारा, क्योंकि वो कंप्यूटर बेस्ड हैं, सारे MCQs बेस्ड होंगे, तो उनका रिजल्ट जल्दी अनाउंस होना चाहिए, जैसे कि बाकी बॉडीज भी करती हैं। जैसे पेपर हो फौरन रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि वो बच्चा फिर प्लान कर सके कि उसे दोबारा वो पेपर कब देना है। जो सर ने पहले भी बात की कि जी मार्च में जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है ट्रांजिशन में इशू आएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी एक दफा के लिए से मार्च के थोड़ा सा लेटर पार्ट पे, एंड में या सेकंड लास्ट वीक में एग्जाम्स लिए जाएं, ताकि जो कैफ 1 का इशू चल रहा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की नहीं पढ़ी तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे पड़ेगा, तो एक लिवरेज मिल जाएगी 30-35 दिनों की, जिसमें हम एक कोर्स डिजाइन कर सकेंगे, रादर देन हम ICAP को कह रहे हैं कि वो एक कोर्स डिजाइन करे कि जिसकी बेसिस पे वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को थोड़ा पढ़ ले और फिर रिपोर्टिंग 1 को पढ़े। तो व्हाई नॉट राइट्स खुद ही डिजाइन कर लें एक छोटा सा कोर्स, क्रैश कोर्स टाइप, जिसमें वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज उन बच्चों को दे दे जिन्होंने नहीं पढ़ी, और फिर वो उनको रिपोर्टिंग 1 पढ़ाने की तरफ लेकर जाए। लास्ट कमेंट सर मेरा ये कि जैसे इन्होंने कहा कि उमर साहब ने कि जी बुक्स इंशाल्लाह अक्टूबर में अवेलेबल हो जाएंगी, सो मेरी असम्पशन है कि PRC की बुक्स भी अवेलेबल हो जाएंगी। सो एज अ प्रिंसिपल ऑफ राइट, अगर मैं एक बच्चे की इनरोलमेंट कर रहा हूँ सितंबर में, वो मेरे पास एडमिशन ले लेता है, अब 1 अक्टूबर को किताबें आ गई हैं, सो क्या ICAP उनको PRC में इनरोलमेंट देगा? जब ऑब्वियसली मैंने उसको ICAP के साथ भी रजिस्टर करवाना है, सो वो क्या PRC में इनरोल होगा या AFC में? क्योंकि अगर वो AFC में इनरोल होगा तो PRC की बुक्स आ चुकी हैं, और दिसंबर में वो अगर AFC दे देता है तो शायद वो नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मार्च में PRC देना है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा ना क्लियरिटी ये हो जानी चाहिए कि ठीक है फिर हम दिसंबर में AFC की एग्जाम्स ही ना लें और फिर हम सिर्फ मार्च में PRC की एग्जाम ले रहे हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर। मेरे साथ जरा इसका जवाब सोच के रखिए सर। बस ये एक कमेंट था, बाकी कुछ नहीं सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू उस्मान। ये मकबूल साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं से जरा इसका जवाब ले लूं। जी, हमारी जो मार्च में उमर साहब नहीं इजाजत मिली भाई मुझे, आप रुक जाएं मकबूल साहब की बात। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक टाइम लिमिटेशन आ गई, एक अपॉइंटमेंट है, जाना है, तो ये ना समझा जाए कि ये वॉकआउट है, बस ही मैं रिक्वेस्ट करके निकलना चाह रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू जी। उमर साहब उसका जवाब दे दें। वो बच्चा जो है आपकी नई स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, और वो 3 माह पहले आप कहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर भी करवाए, तो इसका मतलब दिसंबर में नई स्कीम में रजिस्टर हो जाना चाहिए, तो स्कीम ही नहीं होगी तो क्या होगा? तो क्या पहले अक्टूबर 29 तक जो है हमारे AFC की रजिस्ट्रेशन हो रही होगी, जो दिसंबर एग्जाम के लिए है। अभी तक यही अनाउंस्ड है, यही हमारी फर्म कमिटमेंट है। अगर काउंसिल को चेंज करे तो अलग बात है, अदरवाइज हम AFC का एग्जाम ले रहे हैं दिसंबर में। देख लें, अगर हमने इफेक्टिव डेट कहा हुआ है मार्च, तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे PRC की उससे पहले? जी, हमने मार्च नहीं कहा, हमने स्प्रिंग लिखा हुआ है। और दोनों में क्या फर्क है? मैं भी समझ रहा हूँ आपके साथ। फर्क सिर्फ ये है कि मैंने इस बात में सारा कुछ प्रेजेंट करना है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड।
वो ये है कि हमने इसको बिल्कुल सोच समझ के लफ्ज स्प्रिंग लिखा था। एक तुम्हारा स्प्रिंग का वर्ड यूज होता है मार्च का, समय के पढ़ लिखे लोगों के सामने मुझे बिठा दिया आपने और किया यार, बहुत बदला ले रही। जो इनरोलमेंट्स हैं जो स्प्रिंग के लिए हो रही होंगी, वो हमारी टेंटेटिव जो अपनी इंटरनल है वो बायलॉ के अप्रूवल के बाद, जो कि हमारी पूरी कोशिश है कि फरवरी में हम इनरोलमेंट करेंगे इसकी। एग्जामिनेशन का पहला कब होगा ये बताएं। स्प्रिंग में, जो कि मार्च में भी हो सकता है और अप्रैल में भी हो सकता है। मार्च स्प्रिंग क्या होता है यार? स्प्रिंग फरवरी में शुरू होता है या दिसंबर में? मार्च 21 से शुरू हो जाता है, लेकिन हम तो स्प्रिंग मार्च पूरा ले लेते हैं। यानी मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है। जी, एटलीस्ट 2 मंथ्स कोई भी सीजन रहता है। नहीं, आप सीजन की बात ना करें सर, कैलेंडर मंथ्स की बात करें। एक तो ये जी, कैलेंडर मंथ में मार्च अप्रैल दोनों को ट्रीट किया जा सकता है स्प्रिंग में। अगर अप्रैल में ये करेंगे तो क्या मार्च में एएफसी के अटेम्प्ट होगी या नहीं? नहीं, एक्चुअली हमारा एक होगा विंटर अटेम्प्ट, जो कि विंटर 2021 होगा, वो एएफसी होगा। स्प्रिंग 2022 जो है वो पूरी कोशिश है कि वो हमने न्यू स्कीम यानी पीआरसी करेंगे, उसी की इनरोलमेंट करेंगे जो एग्जामिनेशन की इनरोलमेंट्स होती हैं। और उसी पे मैं सब एक और चीज बता दें, आज वो जो स्कीम है वो अप्रूव हो जाए और फर्ज किया जो हमने सिलेबस इस वक्त एक्सपोज किया है 100% यही रहता है और स्कीम अप्रूव होगी। देयर इज नो डिले बिकॉज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल और चेंज इन सिलेबस। तो एएफसी की आखिरी अटेम्प्ट कब होगी और पीआरसी की पहली अटेम्प्ट कब होगी? एएफसी लास्ट अटेम्प्ट होगी विंटर 2021, जो कि दिसंबर में अनाउंस्ड है। जी, दिसंबर जिसकी जी एएफसी की दिसंबर की होगी और पहली अटेम्प्ट पीआरसी की कब होगी? मार्च। एक सेकंड सिनेरियो कर लें सर जी। मिसाल के तौर पे 1 महीने के बाद सितंबर की 20 तारीख को अप्रूवल होती है, फिर पीआरसी की अटेम्प्ट पहली कौन सी होगी और एएफसी, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है। हम तो कह दिया कि मार्च, जिस तरह इन्होंने सर का तो ख्याल है उमैर साहब का कि फरवरी तक इंशाल्लाह ताला। नहीं हो सकता, आप चेंजेस इतनी सजेस्ट कर दें और इतनी वैल्यूएबल होंगे, हम वापस मंगवा लें जी कि इसमें चेंज नहीं चले, कोई बात नहीं, ऐसी एज इट इज भी हो जाए। तो उसमें अगर 2 महीने लग जाए तो ये जो बात अभी हुई कि हम मार्च अगर अप्रूवल की डिले हो जाए उमैर साहब, तो फिर कैसे सिनेरियो आप देखते हैं? पहली अटेम्प्ट कौन सी होगी फिर नई स्कीम की? जी उमैर साहब। जी, इनरोलमेंट डिले हो जाए तो उसका एक ऑल्टरनेट हम इस प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस करके फिर काउंसिल को प्रेजेंट करेंगे, जिससे ताकि किसी का कोई हार्डशिप क्रिएट ना हो। अब ये मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ एक लेजर सेशन मुझे करना पड़ेगा इन सारी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमें भी अंदाजा था जिस नहीं, मैं तो एजुकेट हो रहा हूँ हम भी ऑन योर साइड, हमारी भी यही दरखास्त है, मगर पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे उधर का भी बताना है ना। एडमिनिस्ट्रेटिवली यही इशू है कि अगर हम मार्च में देखिए, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि मार्च 2022 में हम एग्जाम लेंगे, एग्जाम लेने का मतलब है कि उसकी एनरोलमेंट कब होनी है और उसको फिर एग्जाम कब लेना है और क्या जरा टेंटेटिव शेड्यूल बना के मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू। बस एक बात सर कर लूँ फिर आप चले जाइएगा। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है ये क्लैरिटी आना, वरना हम एडमिशंस लूज कर जाएंगे। अब एज अ फादर ऑफ अ स्टूडेंट हु इज अपीयर्ड इन एफएससी, इसको देखिए कि वो एक ऐसी क्वालिफिकेशन है बच्चे को लेके आ रहा है कि जिसकी वो बॉडी कह रही है कि अभी हमें पता नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद तुम्हारा एग्जाम एएफसी का होगा कि पीआरसी का होगा। थोड़ा सा इसको मेरी सजेशन है कि जो अभी आपने फरमाया इस पे क्लैरिटी ज्यादा, इस सेशन का यही फायदा जी ज्यादा क्लैरिटी लाने की जरूरत है, वरना इनटेक अफेक्ट हो जाएगी। जी इंशाल्लाह वो नहीं इफेक्ट होने देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि पहले बात हो चुकी है इसके ऊपर, कैफ 1 और कैफ 2 खालिद साहब ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि इंस्टीट्यूट को 15 जुलाई वाले दिन ये नहीं करना चाहिए था और उसके बेसिस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं टीचरों की तरफ से और जो टीचर्स ने सोशल मीडिया पे शेयर किया। पॉइंट ये है कि सबसे पहला स्टेप जो है आई कैप ने वो डेट अनाउंस कर दी या जो स्कीम थी वो अनाउंस कर दी, सोशल मीडिया पे आ गई, हर बच्चे के पास आ गई। हम उसको कभी भी प्राइवेटाइज नहीं कर सकते थे।
हाँ, टाइमिंग गलत थी और उसके बाद फिर हमें लगा कि शायद इसमें केओस है, इसमें ये मसले मसाइल हैं। उसके बाद ICAP ने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया ICAP की वेबसाइट पे, जहाँ से मजीद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और उसमें फिर बच्चों ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिए थे और बच्चे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो हम जिसके ऊपर आज तक कंफ्यूज हैं, कम से कम सबसे पहला बंदा जो क्लियर है ना इसमें, वो स्टूडेंट है, उसको पता है कि भाई ये नहीं होने जा रहा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सारे के सारे इशू ये है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 2 साल पहले हमारी एक कॉलेज में इस सिलेबस के ऊपर, कंटेंट्स के ऊपर जो चीज़ें ऐड होनी है, जो चीज़ें डिलीट होनी है, वो मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमसे बकायदा तौर पे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाए गए थे, हमें चीज़ें शेयर हुई थी। बट डिस्क्लोज तो आपने कर दिया? नहीं सर, पॉइंट ये है कि सब कुछ NDA साइन करने के बावजूद आपने डिस्क्लोज कर दिया। पॉइंट ये है कि अब तो स्कीम ही आ गई ना, 2 साल पहले की मैं बात करूं, कोरोना से पहले NDA एप्लीकेबल रहता है। चले, वो मैंने ये नहीं बताया कि उसमें क्या चीजें थी, हमने क्या ऐड किया या मैनेज किया। पॉइंट ये कि ICAP के साथ ये सारी की सारी जो स्कीम है, वो सारी की सारी 2 साल से ये वर्किंग चल रही है, सारा कुछ हो चुका है। बड़ी मीटिंग्स भी होंगी जिसमें कुछ टीचर्स स्कीम पे काम जो है 2017 से शुरू हुआ। हाँ जी, 2000 मतलब कोरोना से पहले हमें पता है कि इस चीज के ऊपर सारा कुछ डिटेल में डिस्कस हो चुका हुआ था। अब पॉइंट ये है कि ये सारा कुछ एक्सपेक्टेड था, ये सारा कुछ प्लान था, टीचर्स को भी पता था कि 2021 में स्कीम आनी है। 2013 की जो स्कीम थी 2014 में अप्लाई हुई थी, तो डेफिनेटली 2021 की स्कीम है, मैक्सिमम लेट हो जाएगी तो 2022 में स्प्रिंग नहीं तो ऑटम में आ जाएगी, लेकिन अगले साल आ जरूर जाएगी। ये हर किसी को क्लियर था। इशू आया है या जो टीचर्स की तरफ से जो आए हैं रिमार्क्स हैं, वो ये है कि 15 जुलाई को ये क्यों हुई, या पहले हो जाती थोड़ा सा, या सितंबर तक का वेट कर लिया जाता। तो यहाँ पे वंस अगेन पॉइंट ये है कि कैफ 1 और कैफ 2 के ऊपर सबसे ज्यादा इशू आ रहा है जी कि एग्जाम क्यों हो रहे हैं। पॉइंट ये है कि कैफ 1 कैफ 2 अगर बच्चा पढ़ चुका है तो उसकी तो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे कॉलेजेस को चाहिए कि पहले भी कॉलेजेस ने ये कैफ 1 और कैफ 5 का पेपर जो था ना, पहले एक ही था। स्कीम पे कमेंट कर दें अगर जी, मैं वही कर रहा हूँ कि कैफ 1 और कैफ 5 पेपर पहले भी एक था, बच्चे पहले भी पास होते थे, बच्चे अब भी पास हो जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। या तो सारे पाकिस्तान के कॉलेजेस मिलकर ये कह देना कि कैफ 5 में जो बच्चा पूरे पाकिस्तान से अपीयर होगा, एक भी बच्चा पास नहीं होगा, तो ICAP बहुत बड़ा माजरत के साथ, मगर हम कैफ पे तो PRC पे तो बात नहीं कर रहे हैं ना इस वक्त। जी जी, ये सेशन इसलिए नहीं कि कॉलेजेस ने कैसे अपने आप को प्लान करना है, वो उनका बिजनेस है। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। अगर इस पे बात कर लें तो मैं वही कह रहा हूँ कि कैफ 1 और कैफ 2 अगर PRC में जा रहा है और बच्चों को उसमें कोई फेवर मिल रही है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई इतराज होना चाहिए या इसमें किसी को ये होना चाहिए कि जी बच्चों का लॉस हो रहा है। किस तरह, मुझे नहीं समझ आ रही किस तरह का लॉस हो रहा है। अब बच्चा अगर कैफ 5 में जा रहा है तो ये कॉलेजेस उसके हिसाब से पॉलिसी बनाए, कॉलेज उसके हिसाब से अपने सेमिनार करे, बच्चों को करे, तैयार करे कि भाई आप। मेरी आपसे यही अर्ज होगी कि प्लीज PRC पे बताएं क्या करना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कॉलेजेस ने कैसे प्लान करना है, वो कॉलेजेस का बिजनेस है, उनको पता है। हाँ, वो कॉलेजेस का काम है, वो जी जी ICAP का काम जो नहीं है। हमारे नजदीक जो आपकी पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर किसी तरह की किसी चेंज की जरूरत नहीं। थैंक यू। ऑनलाइन ले लें। मिस्टर हसन है। अस्सलाम वालेकुम, हसन खानानी हियर फ्रॉम KNS कराची। सर मैं बस कुछ चीजों को समराइज करूंगा और थैंक यू ICAP पे जिन्होंने एक मीटिंग रखी। और यार समराइज अगर आप उसकी बजाय अगर आप ऐड करें तो मैं सवाल भी सर, मेरी इसमें सजेशंस भी है जैसे उस्मान साहब ने कहा है। और सजेशन ये है सर कि क्योंकि अब इट सीम्स के ICAP का जो है हैज मेड इट्स माइंड कि हमें जो है मार्च से नई स्कीम लेकर के आनी है, तो सर एक सजेशन ये है जिसको जरूर कंसिडर किया जाए। और सजेशन के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो सर काफी नए पेपर्स ऐड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सर टीचर्स की भी अपनी रिसर्च वर्क होगा, टीचर्स का भी हैंड आउट प्रिपरेशन होगी। तो मार्च के अटेम्प्ट को ज्यादा नहीं तो 1-2 हफ्ते अगर हम डिले कर सके तो इट वुड बी वेरी गुड। और उसके पीछे एक और रीजन सर ये है कि अभी उमर जमाल साहब ने कहा कि विंटर जो है, विंटर 2021 तक हमारा FC होगा। तो येट अगेन सर कि वो बच्चा जो FC पढ़ेगा उसने जो है IE और ECO नहीं पढ़ा हुआ होगा विंटर 21 तक, तो उसको फिर FAR 1 की तैयारी करवाना और ये सब चीजें, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम होगा। तो ये सजेशन है कि ICAP को इसको कंसिडर करना चाहिए कि मार्च अटेम्प्ट के थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे। पहली सर एक तो ये सजेशन थी। सर दूसरी चीज, इसको आई वांट कि ICAP शुड अंडरस्टैंड इट फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आज की मीटिंग के बाद हमें बिल्कुल बच्चों को क्लियरिटी दे देनी चाहिए। और इसको अफर्मेशन अगर मिल जाए उमर जमाल साहब की तरफ, इट वुड बी वेरी गुड कि सर अब बच्चे पढ़ चुके हैं IE एंड ECO। तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि सर IE ECO अगर बच्चा पढ़ चुका है तो उसको FAR 1 के अंदर कोई मसला नहीं आएगा।
तो पीआरसी की अगर उसको अब एग्जाम्शन मिल भी जाए तो नॉट एन इशू, बट हमें ये क्लैरिटी सेट बिल्कुल दे देनी चाहिए ताकि इसके बाद बच्चा कैफ के उन पेपर्स की तरफ ज्यादा फोकस कर सके। जैसे लॉ है, बीएमबीएसए जो नई स्कीम में चेंज हो रहा है, और एज अ टीचर आज शायद आईकेएफ से तो ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा। तो उमैर जमाल साहब ने सर सिर्फ एक ये क्वेश्चन है कि उमैर जमाल साहब आपने कहा कैफ तो पैरेलल नहीं चलेगा, तो आप काइंडली ये कंफर्म कर दें कि अगर कैफ पैरेलल नहीं चलेगा तो आईए जो है या इको है, कहीं उसकी कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि हम उसका जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनका पीआरसी में हम जो है कोई असेसमेंट ले लें, क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? थैंक यू जी। उमैर साहब आप जवाब देते हैं इसका। सर इसी बात को सिर्फ मैंने कहना है कि आप आज की मीटिंग का आउटकम अगर हम ये क्लैरिटी ले आए कि भाई आईए और इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, इन बच्चों ने पेपर इनको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देखें आई कैप ने स्कीम दे दी हुई है, आई कैप इससे ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं देगा। मैं 2 से 3 दफा कह चुका हूँ, मजीद 50 दफा कह सकता हूँ, मगर बात यही रही। ठीक हो गया। वी विल नॉट से कि आप ये फैसला करें और वो फैसला करें, दिस इज नॉट आवर जॉब, ये स्टूडेंट का मामला है। उमैर साहब पीआरसी पे कैफ 1 और 2 की ट्रांजिशन के मतलब बात कर रहे हैं, हसन साहब आप कुछ कहना चाहें? जो क्लैरिटी है वो एफएक्यूज में मौजूद है और रेगुलेशन में भी है। इस वक्त एक्सपोजर ड्राफ्ट के लिहाज से स्टूडेंट को जो कैफ में इस वक्त होंगे, चाहे वो दिसंबर के बाद हो, दिसंबर का एग्जाम देने के बाद हो, और उन स्टूडेंट के लिए जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स उन्हें नहीं पढ़ना होगा, ना उन्हें एग्जाम देना होगा। लेकिन जो बात बार बार यही कही जा रही है कि ये एक्सपोजर ड्राफ्ट है और इसको एक्सपोजर ड्राफ्ट के तौर पे ही ले रहे हैं हम लोग। यानी मैं यहाँ कह दूं कंफर्म, या प्रेसिडेंट कह दें कि कंफर्म अब यही होने वाला है और उसके बाद हम कुछ और चेंज करें, तो ये इसको क्लियर रहें कि हम ये क्लैरिटी दे चुके हैं कि ये एक्सपोजर यही है कि कैफ 1 and 2 would not be required from those who have passed AFC। ठीक जी। नेक्स्ट कैफ पे कमेंट्स ले लें या पीआरसी दोनों पे कर दें जी प्लीज। साथ ले लें अब पीआरसी तीनों पे आपने बनाए हुए तो तीनों पे दे दें जी। ठीक सर, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जो पीआरसी का टाइम है उसके ऊपर मैं इंडोर्स करूंगा कि थोड़ा है, पर्टिकुलरली 3 month एक्सटेंशन आफ्टर 1 year। पर्टिकुलरली इसको भी कंसीडर करें कि अगर किसी स्टूडेंट का सिर्फ एक पेपर रह जाता है, ठीक है, पीआरसी में, और वो 3 month में नहीं कर पाता, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे का एटीट्यूड जो है वो इस तरफ ला सकें। लेकिन जब बच्चा एफएससी से आता है, ए लेवल से भी आता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है उसे कि वो इस प्रोफेशनल स्टडीज के हवाले से उसका माइंड बिल्डअप कर सके। तो एक तो ये थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दें इसका, कम से कम ये है कि 6 month तो मिनिमम मेरे ख्याल में, 3 month की बजाय। अच्छा सर, दूसरी चीज सर इसमें ये थी कि जो I2B पे बात की है, मैंने गौर किया है, इस तरह का एक पेपर एक ACCA में भी होता है, इसको हम कहते थे अकाउंटेंट इन बिजनेस। उसकी डेफिनेशन ये होती थी कि इट इज़ अ टूर अराउंड होल ACCA। तो मैंने जब इस कोर्स आउटलाइन को देखा तो मुझे यही लगा कि इट इज़ आल्सो अ टूर अराउंड होल CA। तो उस हवाले से कंटेंट्स को थोड़ा बहुत चेंज कर लें, लेकिन पेपर बड़ा पावरफुल है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे टीचर्स को मैंने पढ़ाते देखा, वो फर्जी सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट को बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होता। तो इन दैट सेंस अ वेरी पावरफुल पेपर। अच्छा, जो एक चीज है वो ये है सर कि जो आपका एक चॉइस है आपकी अपनी, कि आपने इकोनॉमिक्स को नाम दे दिया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन सर जो आपके कंटेंट्स हैं उसको जहां भी मैंने देखा है, इसका नाम मैंने देखा है इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। अच्छा, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, ये मैंने टाइटल देखा मोस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, उसमें ये है कि सर टाइटल पावरफुल देने से जरा, आप जानते हैं कि क्वालिफिकेशन की ना जरा अपीयरेंस होती है एक, और टाइटल कंटेंट के अगर रेलेवेंट होगा तो खूबसूरती जरा ज्यादा आ जाएगी। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज अ वेरी old fashioned title, I'm sorry to say, in which we taught like simple concepts। ये दो मुख्तलिफ चीजें नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस। सर उसके अंदर थोड़ा सा हम एनालिसिस फंक्शन ले आते हैं, तो वो इसके अंदर कुछ कंटेंट्स लग रहे हैं, जैसे कि
हम फिस्कल पॉलिसी को ला रहे हैं, टैक्सेशन को ला रहे हैं, जाहिर है उसका इम्पैक्ट हम बिजनेस में बताएंगे, तो इम्पैक्ट हम उस पर बताएंगे तो फिर वो एनालिसिस से रिलेट कर जाता है। बाकी आपकी ऑब्वियसली आपकी चॉइस है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऑनलाइन ले फरहान है, CFAP, MS, एवरीथिंग इज ओपन नाउ। कौन सा फरहान और रहमान है जी। फरहान साहब, नेक्स्ट ले लीजिए। इकराम है हमारे साथ, उनका क्वेश्चन। इकराम रजा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई एम इकराम रजा फ्रॉम CFE कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। अच्छा, सबसे पहले जो भी ये डिस्कशन चल रही है तो उसमें आपने कंक्लूड किया कि हमने जो स्कीम दे दी है यही ऑलमोस्ट हमारा ICAP ने कह दिया कि यही होने जा रहा है। उस हवाले से मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जो PRC है इसको आप दिसंबर से इंप्लीमेंट करें। वो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप PRC को डिले लेके जाएंगे, अभी क्योंकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट सितंबर में अनाउंस होने जा रहा है, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे AFC के वो दिसंबर अटेम्प्ट में अपेयर हो रहे होंगे। अगर वो दिसंबर अटेम्प्ट में अपेयर होंगे और उस टाइम उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं होगी, वो AFC देंगे, तो उनको अगर AFC पास करने की बेस पे CAF 1-2 एग्जाम्प्ट हो जाएगा तो वो डायरेक्टली CAF 5 की तरफ जाएंगे। तो अगर हम पुराने AFC के बच्चों की बात करें तो मोस्टली उनमें से CAF 1 और CAF 2 इस टाइम पढ़ चुके हैं बच्चे, और उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है। और दूसरा ये कि अगर हम उनको एग्जाम्पशन, दूसरा पॉइंट ये कि CAF 1-2 को अगर हम एग्जाम्पशन नहीं देते उससे कंफ्यूजन क्या होगी? कंफ्यूजन ये होगी कि एक बच्चा है, उसका CAF का कोई ऐसा पेपर पास है जो न्यू स्कीम में ग्रुप B में फॉलो करता है, और आप उसको एग्जाम्पशन नहीं देते CAF 1-2 की, और वो ट्रांजिशन में चला जाता है। ट्रांजिशन में क्या होगा? आप उसको कहेंगे कि आपने CAF 1-2 1 साल के अंदर पास करना है या आपने उसको जाके PRC में पास करना है, तो वो क्या होगा? उसका ग्रुप A भी ओपन होगा, उस स्टूडेंट का ग्रुप B भी ओपन होगा, वो सेम टाइम पे PRC में भी अपेयर हो रहा होगा। तो ये स्टूडेंट के लिए भी कंफ्यूजन हो गई और राइट्स के लिए भी होगी और एज वेल एज ICAP के लिए भी होगी। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट मैं शॉर्ट समरी बता रहा हूँ टाइम को मैनेज करते हुए। थर्ड पॉइंट इसमें मैं कहता हूँ कि मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई है। जब आपने एक मैक्सिमम टाइम दे दिया है तो उसके बावजूद मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स की रिस्ट्रिक्शन बनती नहीं है। स्पेशली अगर हम CFAP की बात करें तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक अटेम्प्ट में 2 पेपर दें, वो अब उसके साथ साथ एक पेपर अपेयर हो रहे होते हैं, वो दे रहे होते हैं, तो उनके लिए मैनेज भी नहीं होता। समटाइम आपको पता है कि इस टाइम एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, सैलरी जो है वो क्या है, कितनी मिल रही है, उस लिहाज से उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो मिनिमम 2 पेपर्स को अपेयर हों उसमें और PFs की सबमिट करवाएं। एक तो इसको रिड्यूस करें, खत्म करें। और एक लास्ट चीज है कि अगर इसमें सबको रिलैक्सेशन मिल रही है, उनकी अटेम्प्ट्स रिवाइज हो रही हैं, फ्रेश हो रही हैं, तो जो स्टूडेंट्स को आके आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया हुआ है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि उनको भी कंसीडर किया जाए और उनको भी मौका दिया जाए कि वो स्कीम के अंदर आगे अपना आप को, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स उनमें से ऐसे थे कि जिन्होंने 4-4 साल लगा लिए हुए थे और वो उनके आर्टिकल्स भी कंप्लीट हो गए हुए थे और वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, जिसकी वजह से वो उसको डिस्क्वालीफाई की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सके। तो ये मेरी सजेशंस हैं कि इनको कंसीडर किया जाए, स्पेसिफिकली PRC को दिसंबर में इंप्लीमेंट किया जाए। थैंक यू। नोट कर लिए जी आप। थैंक यू। नेक्स्ट ले अंजम साहब। इन पर्सन लेना है, इन पर्सन है, इन पर्सन है, ठीक है। नहीं ऑनलाइन ले लें, ठीक है। मिस्टर अंजम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगेन कंसर्न वही है जो बाकी तमाम टीचर्स के अकाउंटिंग के हवाले से हैं, क्योंकि मैं भी अकाउंटिंग का टीचर हूं। तो सबसे पहले मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि क्या ये स्कीम फेडरल गवर्नमेंट को भिजवा दी गई है अप्रूवल के लिए या अभी भिजवानी है? जी दोबारा पूछिएगा। क्या ये स्कीम फेडरल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भिजवा दी गई है या अभी भिजवानी है? भिजवा दी गई है। अगर ये भिजवा दी गई है तो सर 8 अगस्त को जो कमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसका क्या मकसद रह जाता है? उसका मकसद है भाई, आप प्रोसेस को नहीं समझ रहे। फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाई गई है, फेडरल गवर्नमेंट ने उसके बाद नोटिफिकेशन इशू करना है और उसके ऊपर कमेंट्स मांगने हैं पब्लिक से, वो हमारे पास भी आएंगे। उस वक्त स्कीम में हमारे पास दोबारा टाइम होगा कि हम कोई भी चीज ऐड करवा सकें या डिलीट करवा सकें।
चले, दैट्स फाइन। कमेंट्स का यानी कि इसका मतलब है कि कमेंट्स का फायदा होने वाला है। दूसरी बात यह कि अगर कमेंट्स का फायदा होना है तो मेरा नहीं ख्याल कि अकाउंटिंग का कोई टीचर भी इस बात के ऊपर एग्री नहीं करेगा या इसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट नहीं देगा कि इंट्रो एग्जाम्प्ट करके बच्चे को FR1 पढ़ाई जाए। अच्छा, काफी टीचर अभी ये कह रहे हैं, कुछ टीचर अभी 2-3 ने कहा कि इंट्रो की क्लासेस PRC पे तो आप बात कर चुके हैं ना पहले भी? नहीं, मैं पहले तो बोल रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं, मेरा आपका नाम भी आया था, फिर और कौन है आपके नाम से? अंजुम तो एक ही है स्कैंस फैसलाबाद। मैं पहले दफा बोल रहा हूँ सर, पहले दफा बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरा फिर ये क्वेश्चन है कि जो टीचर कह रहे हैं ना कि अभी जो कुछ बच्चे इंट्रो की क्लासेस ले चुके हैं, वो उन्होंने क्लासेस इनफैक्ट 70-80% ली थी, अभी 20% कोर्सेज रहते थे। और प्लस उन बच्चों का क्या बनेगा जो दिसंबर में AFC देंगे, उनको हमने जस्ट AFC की बेस पे अकाउंटिंग एग्जाम कर दी। और ये वो बच्चे हैं, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक अभी स्टफ आ रहा है हमारे पास पिछले 1 साल से। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट के भी एग्जाम नहीं दिए थे, इंटरमीडिएट का एग्जाम देने लगे, गवर्नमेंट ने उनको प्रमोट कर दिया। अभी अकाउंटिंग का एग्जाम देने लगे थे, हमने उनको प्रमोट कर दिया। तो पता नहीं ये कौन सी माँ बाप की जो है ना कोई मखसूस दुआओं के साथ जो है ना बच्चे ये CA में आए हैं। तो लेकिन जो है ना अगेन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आना है, अकाउंटिंग का कोई टीचर इस बात सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि सेशन ने ना मजीद कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है और बहुत बड़ा क्योस है। सर ये ओपिनियन है, सजेशन दे दें अपनी, वो क्या है आपकी? कि अकाउंटिंग को एग्जाम किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन फिर एक इतराज ये है कि अब अगर एग्जामिनेशन रिवर्स करते हैं तो उन बच्चों का क्या बनेगा जो रिफंड ले चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम में है। मतलब मेरा ख्याल में ICAP इस सिचुएशन सजेशन अपनी देना, सजेशन क्या है? ना आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। एग्जामिनेशन देंगे तो क्रिटिसिज्म है, अब वो एग्जामिनेशन रिवर्स करते हैं तो क्रिटिसिज्म। सर सजेशन क्या है आपके इस वक्त, वो बता दें। यही है जो अकाउंटिंग के तमाम टीचर्स की होगी कि अकाउंटिंग एग्जाम नहीं होनी चाहिए। ये ट्रांजिशनल फेज ठीक है, आपने पोल कर लिया होगा वहां पे। अभी सजेशन क्या है ICAP के लिए, वो बताएं अगर कोई है तो, वरना हम आगे चलें बाकियों से पूछें। अकाउंटिंग का जो एग्जाम है वो PRC के अंदर बच्चों को दिलवाना चाहिए। जिसका AFC पास है उसको भी अकाउंटिंग का एग्जाम, एटलीस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग का एग्जाम दिलवाना चाहिए उसको PRC के मुताबिक। आपका मतलब एग्जामिनेशन नहीं देनी चाहिए ट्रांजिशन में? थैंक यू। ठीक। मिस्टर कंवर आबिद है, उनका क्वेश्चन है। मिस्टर कंवर क्वेश्चन करें। नेक्स्ट ले लीजिए। मिस्टर आतिफ आबिदी है। जी आतिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ऑल्दो कंप्लीट टीचर्स के सेशन के बाद एक डिस्कशन हुई सर, थोड़ा सा एक सजेशन है सारी पॉइंट्स को जोड़ते हुए, बड़ी छोटी सी कोशिश करूंगा। कुछ टीचर्स को ये परेशानी है कि कैफ 1 अगर एग्जाम्प्ट हो गया तो वो जाहिर है बच्चों की अकाउंटिंग की बेस कैसे बनेगी। कुछ ये मानते हैं कि वो पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा 2 अलग अलग डायमेंशंस हैं। इस वक्त सितंबर में होने जा रही है कैफ की अटेम्प्ट, और उस अटेम्प्ट के लिए बच्चों को इंट्रो तकरीबन 80% उन्होंने पढ़ ली थी। प्रॉब्लम आ रहा है जो AFC का बच्चा अचानक से प्रमोट हो जाएगा। अच्छा, जो पिछले AFC कर रहे थे उनके पास भी अभी नई स्कीम तक जाने में वैसे ही 6 महीने, यानी कि 6 महीने बाद उनकी नई स्कीम के मुताबिक कोई नया पेपर होगा। तो अगर मतलब थोड़ा सा सारी चीजों को ऐड करके एक विन विन सिचुएशन निकाली जाए, सिर्फ दिसंबर के लिए AFC के अंदर, अगर दिसंबर में पास हुए हुए AFC से ICAP सिर्फ अकाउंटिंग 1 का पेपर, जो इंट्रो का पेपर अगर एडिशनली ले ले, तो उससे वो जो गैप सबको नजर आ रहा है कि AFC देने वाला बच्चा दिसंबर में वो बेचारा कैसे कॉप करेगा, क्योंकि कैफ वालों ने तो वो पेपर पढ़ लिया जो कैफ में इस वक्त मौजूद है। तो अगले 6 महीने में जो PRC पढ़ रहा होगा नया वाला मार्च के लिए, वो भी इंट्रो पढ़ रहा होगा। तो प्रॉब्लम जो गैप है वो दिसंबर में AFC देने वाला बच्चा है। तो अगर दिसंबर में AFC देने वाले बच्चे को सिर्फ एक एडिशनली इंट्रो का पेपर चाहे MCQ बेस पे मार्च में अपने बाकी दोस्तों के साथ देने की इजाजत दे दी जाए, तो उससे वो जो हम सबको लग रहा है कि गैप है वो भी खत्म हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक पढ़ लिया और जो अपने पेपर्स कई ड्रॉप करके बैठ गए हैं कि अच्छा ये तो एग्जाम होने जा रहा है, तो उनका भी नुकसान नहीं होगा। तो मुझे ये थोड़ा सा एक विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। इससे ICAP का जो इरादा है इन 2 को एग्जाम करने का, और बड़ा फर्म इरादा है, वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। कॉलेजेस को जो गैप नजर आ रहा है वो भी मसला हल हो जाएगा। सिर्फ
दिसंबर AFC के बच्चे अगर सिर्फ और सिर्फ कैफ 1 का पेपर यानी कि वो जो इंट्रो का पेपर है वो चाहे PRC के पैटर्न पे जो MCQ बेस्ड है जिस तरह से भी एटलीस्ट उनकी असेसमेंट हो जाए तो हम सबको थोड़ा तसल्ली हो जाएगी कि वो बच्चे अब इस काबिल हैं कि वो प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, ये उमर साहब नोट कर लें। उसके अलावा कुछ दोस्तों ने कमेंट्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी थे जो पूरी तरह आंसर नहीं हो सके, कुछ वो ज्यादा बात भी करना चाह रहे थे। वो चूंकि रिकॉर्डिंग है उसके अंदर मौजूद है नाम, तो उनसे 1-to-1 में भी जरा चीजें ले लीजिएगा और अपने FAQs भी रिवाइज कर लीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटरनल डिस्कशन के बाद। तो उसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो आप इशू कर दीजिएगा होपफुली बाय डे आफ्टर टुमारो। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर एक छोटा सा, अगर मैं सॉरी आई एम इंटरप्टिंग और इस तरीके से पूछना, एक CA फाइनल को भी एडवाइस कर लें उमैर साहब तो इट वुड बी रियली गुड। आप बताएं सर। हसन मदनी हियर फ्रॉम केएनएस कराची। उमैर साहब, अब जैसे नई स्कीम आपने कहा कि इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उसमें CA फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी इंडक्शन हो चुकी है, दे आर आस्किंग के जो है दिसंबर 22 उनकी अभी अटेम्प्ट बन रही है आफ्टर 18 मंथ्स। लेकिन अगर नई स्कीम वो हो जाती है एप्लीकेबल, तो उसके बाद उनकी जो पहली अटेम्प्ट होगी CA फाइनल की, विल इट बी दिसंबर 22 और जून 22? थैंक यू जी उमैर साहब, और इसको FAQ में भी ले लीजिएगा। जी, एक साल की अगर अपनी बायलॉ हो जाता है तो विद इन 1 ईयर जिनके कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद जो भी आ रही होगी अटेम्प्ट उसमें उनको चाहिए। मैं तो वैसे सबको यही बता रहा हूँ, ये जून ही बनेगी उसके मुताबिक, क्योंकि नई स्कीम एप्लीकेबल हो चुकी होगी। 1 साल अगर हो चुका हुआ रजिस्ट्रेशन को, एप्लीकेबल हो जाएगी। FAQ में भी इसको ले लें। ठीक, और मिस्टर हसन ने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, he has raised his hand। दोबारा कर लेने दें अगर करना चाहते हैं तो। नो मोर क्वेश्चन, वो मैं आई फॉरगॉट टू लोवर माय हैंड। ओके, थैंक यू। मिस्टर इकराम रजा का क्वेश्चन ले लेते हैं। इकराम साहब कर चुके हैं। इकराम साहब और क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम जी सर जी, एक मैं ये चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज हम जिस पॉइंट पे बैठे हुए हैं तो आपको पता है कि कैफ के एग्जाम होने जा रहे हैं, तो ICAP को चाहिए कि इस कंफ्यूजन को खत्म करे और एज अर्ली एज पॉसिबल इस स्कीम का जो भी इम्प्लीमेंटेशन का बताए, ताकि जो जी ये सारे कह रहे हैं, कोई डिफरेंट बात है तो वो बताएं। देखें, जो कोई एक सजेशन या क्वेश्चन किसी एक साहब का भी है तो वो भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट, आपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना ये चीज। जी सुन लीजिए आपकी बात, ठीक है, थैंक यू। जिशान, आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं 1-to-1 आपसे कर लेते हैं और FAQs में उसको देख लेंगे। ठीक है। आपने कहा था कि उस वक्त PRC की बात करनी है, तो अब हम कैफ के लिए भी वेट हाँ वो बता दो, और कैफ और उसका कोई है तो बता दो। सर कैफ के लिए पहली मेरी चीज इसके ऊपर ये है कि जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन एज फुल टाइम स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ग्रेजुएट 14 इयर्स वाले बंदे को जिसके 45% एग्रीगेट मार्क्स हैं उसको हम लेकर आ रहे हैं और उसको हम अलाउ कर रहे हैं। सर यूनिवर्सिटीज में BCS और बाकी जो उनके एलिवेटेड प्रोग्राम्स हैं उन्होंने भी 45% वाले बंदे को टेकअप करना बंद कर दिया है। हमारे पास जब हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज में अलाउड है, बाद में 50% उसने बेसिस बनाई। जी यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ, हम 100% एग्री। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हम FSC के लेवल पे 60% की बात करते हैं मिनिमम एंटर होने के लिए, तो कोई मतलब ग्रेजुएशन वाले बंदे के लिए 45%, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 45% वाला बंदा सिर्फ नहीं इस कैपेसिटी में होगा कि वो ICAP के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे चल सके। सो जस्ट आई वांट टू रिकॉल, ठीक है, सजेशन मतलब इसको 45 को बढ़ा के मेरे मुताबिक मिनिमम 50 कर दिया जाए, ताकि एटलीस्ट हम जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पैरेलल तो हैं जो कि ये इंस्टीट्यूट को अफेक्ट करती है। दूसरा मेरा सर एग्जाम्पशन से रिलेटेड है, और मेरी एग्जाम्पशन से रिलेटेड जो मेरी इनपुट है वो ये है कि सर हम पाकिस्तान में बैठ के अगर बात करते हैं तो हम अपने इंस्टीट्यूट पिफा को हम सपोर्ट करते हैं। पिफा हमारा AGP का और ICMAP के साथ मिलकर हमारा एक बेबी है, और जो पिफा का जो सिलेबस की मैपिंग अगर देखी जाए विद द रिवीजन, और अब तो उसको IFAC का स्टेटस भी साथ मिल गया है, हम उसको बड़ी इररेशनल एग्जाम्पशन दे रहे हैं टोटल कैफ के पेपरों में से सिर्फ और सिर्फ लॉ की। हालांकि मैं पढ़ाता भी हूं वहां पर, जो FR1 और FR2 का सिलेबस है पिफा के बच्चे का जो फाइनल अकाउंट का पेपर है उससे फार डिफिकल्ट है।
कॉस्ट अकाउंटिंग उनकी जो हमारे पास एग्जाम हमने की है ICMS को और एट द सेम टाइम ACCA को, उनसे वो फार बेहतर है। मतलब ACCA को हम कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम कर रहे हैं, FR1 एग्जाम कर रहे हैं, FR2 एग्जाम कर रहे हैं और ऑडिट भी एग्जाम कर रहे हैं। पिफा की एग्जाम्पशंस देख लेंगे आप किस बेसिस पे की है और क्या उसमें हो सकता है कुछ। मेरी इसके ऊपर पिफा के प्रेसिडेंट से भी, पिफा के वाइस प्रेसिडेंट से भी बात हुई है और उन दोनों की तरफ से यही मुझे फीडबैक आया है कि अभी पेपर की मैपिंग के ऊपर वर्किंग होगी। लेकिन मैं समझता ये हूं कि पिफा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम्पशन है वो बिल्कुल मतलब कि उसकी कोई रैशनलिज्म यहाँ पर नजर नहीं आती। तो जी हम सारे इंस्टीट्यूट्स को एक दफा रिव्यू कर लेंगे। ठीक, बस सर ये दो मेरे पॉइंट्स थे। और तीसरा जो कि आपने कह दिया वो मैं साहब से 1-to-1 अगर डिस्कशन करनी है तो फिर आई विल कॉल हिम ओवर दिस। थैंक यू जी, बैक टू यू सर। थैंक यू जी। लास्ट क्वेश्चन ले लें अजमत साहब से। अजमत साहब आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा कैफ के हवाले से क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही है कि जैसे अभी सितंबर में कैफ के बच्चे जो पेपर्स दे रहे हैं, AFC के या कैफ के स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो नेक्स्ट मार्च में वो जो न्यू कैफ के ग्रुप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो अपीयर होंगे। तो बुक्स मुझे जैसे इंफॉर्मेशन मिली थी कि 1 अक्टूबर से जो है ना वो अवेलेबल होंगी, जबकि नॉर्मली क्लासेस जो है ना वो पहले स्टार्ट हो जाती हैं। और मेरी सजेशन होगी कि हमेशा जो कैफ के स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स बहुत लेट डिलीवर होती हैं। सॉफ्ट कॉपी तो उनको मिल जाती है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना और ये चीज़ें करना काफ़ी टफ है। तो आई होप कि न्यू पॉलिसी, बाकी तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी लेवल पे डिस्कस हो चुकी हैं और इंशाल्लाह उस पर कोई फर्दर प्रोग्रेस भी ICAP जो है ना वो देगा और अपडेट्स देगा। लेकिन ये जो एलिमेंट है इसका सेशन कमेंसमेंट का और बुक्स की जो है ना डिलीवरी का, इसको भी काइंडली नोट किया जाए कि वो भी बच्चों को थोड़ा टाइम भी मिलनी चाहिए। वो ऑलरेडी कर लिया हुआ है, पहले भी ये कमेंट आया है यहाँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। और इतनी आपने पेन ली और सारा कुछ बताने की कोशिश की, आपके इमोशंस भी उसमें थे। दैट शोज के यू लव ICAP एंड स्टूडेंट्स, इसलिए वो इमोशनल होना भी एक नेचुरल चीज है। हम भी जो कुछ कर सकते हैं, इसका सेशन का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि सिर्फ आपको बताया जाए कि अच्छा हम आपकी बात सुनते हैं। नो, नॉट एट ऑल। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक था कि वी वांट टू हियर विद ओपन माइंड। जहां आपको ये भी बताया गया इसकी ये रीजन है, वो सिर्फ जो बैकग्राउंड में थिंकिंग प्रोसेस था ICAP के अंदर वो शेयर हुआ है। इट डज नॉट मीन कि उसको डिफेंड किया जा रहा है। आपके भी जो कमेंट्स हैं दोज ऑल विल बी कंसिडर्ड और उसके ऊपर एक प्रोसेस है, इंटरनल गवर्नेंस प्रोसेस है, उसके थ्रू वो गुजरेंगे और इंशाल्लाह कुछ बेहतर चीजें ही होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।